Am I audible? Yes, ma'am. Assalamu alaikum, all of you. Walaikum assalam. Most of you, I think so, have attended the yesterday session. So I don't think so that there is need to introduce myself. As I have already told you, I am working as a BPS 17 Provincial Medicine Monitoring Team Health and Population Department. And this is all my experience, like clinical pharmacist, pharmacovigilance officer, hospital drug inspector, and pharmacy manager. So we are going to start about today's topic. Should we start now? Yes, ma'am. Okay. Uh, our today's topic is medication handling and safety. Actually, I have a vast experience in hospital setup, like more than 3 years experience in hospital at in different domains. That's why our 3 day session was automatically comprised of all the hospital related activities. Like we discussed yesterday about procurement, about inventory, about cold chain management, about expiry tracking, about prescription review. Now we are going to deal with the medication handling and safety, how to deal with medications, how to handle them, how to ensure safe use of medications. And under this domain, under the medication handling and safety, we are going to discuss about the controlled drugs and narcotics handling, particularly the drugs which use your attention, which use your precautions, which use cautiously. Like आपको डबल चेक्स की जरूरत है, जहाँ पे आपको कॉशियसली प्रिस्क्रिप्शंस को रिव्यू करने की जरूरत है, जहाँ पे आपको उनके एक्सपेंस, उनकी प्लेसमेंट, उनकी स्टोरेज, एवरीथिंग उसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वो कौन सी हमारे पास ड्रग्स है, कंट्रोल ड्रग्स एंड नारकोटिक्स हैंडलिंग उनकी कितनी इंपॉर्टेंट है, लासा कौन सी ड्रग्स होती हैं, हाई अलर्ट मेडिकेशंस कौन सी हैं, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम अडॉप्ट करते हैं इनको इंश्योर, इनकी सेफ्टी इंश्योर करवाने के लिए, इनको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए। तो अब हम ये सब कुछ जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स under the domain of controlled drugs and narcotics handling. What we are going to discuss, we are going to discuss about their safe storage and documentation protocols, how to ensure their safe storage, how to ensure documentation, what are the protocols of documentation, then how to ensure double check systems, why double check systems are there, particularly for the controlled drugs and narcotics, why double check systems should be there, and how to secure handling, how to ensure regulatory and legal compliance in hospital setups. So with these are all are the different domains that we are going to discuss under the umbrella of controlled drugs and narcotics handling. As far as safe storage and documentation protocols are concerned, safe storage of controlled drugs and narcotics in hospitals is critical for ensuring patient safety, regulatory compliance, and the prevention of diversion, theft, or misuse. What is the purpose, why we are highlighting them, why we are highlighting the controlled drugs and narcotics? Particularly, there's a lot of medicines in hospitals, but we are highlighting, we are targeting the controlled drugs, we are targeting their safe storage, particularly because their abuse is very common, their misuse is very common, their theft is very common. Whenever you place the controlled drugs and narcotics without lock, without proper cabinets, and you're just placed on the shelves, and you will see, if you have worked in the hospital setups, there is maximum abuse. Even doctors abused it, even staff nurses themselves misused it. ठीक है, किसी का बैकग्राउंड किसी तरह का भी हो सकता है, वी कांट जज एनीवन, बट ये आई विटनेस हूं मैं, ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है, इवन डॉक्टर्स डू दिस व्हेन फार्मासिस्ट सिट देयर, और वो एक फिर एक थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं, अदरवाइज डिस्पेंसर या स्टाफ नर्सेस से तो वो कहते हैं पकड़ाएं इधर, मुझे ये मेडिसिन दें, नैल्बिन पकड़ लिया, डाइजेपाम पकड़ लिया, ठीक है। तो वो इस तरह जो है ना उसका अब्यूज करते हैं, और जिनको अडेप्ट हो जाते हैं तो वो बेसिकली ऑब्वियसली बाहर अगर फार्मेसी से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उनको नहीं मिल रहा, तो ये एक इजी एक्सेस है कि हॉस्पिटल में, मेन मेडिसिन स्टोर में या फार्मेसी में जाके रिक्वेस्ट करके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उसको ले लिया। तो इनका मिस यूज, इनका अब्यूज बहुत कॉमन है, एडिक्ट्स बहुत है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सेफ स्टोरेज को इंश्योर करना है।
ठीक है, हमने इस तरह से उसका स्टोरेज रखना है, इस तरह की डोमेन होगी जहां पे वो प्रेजेंट होंगे, जहां पे कैबिनेट्स किस तरह के होंगे, लॉग होंगे वो, और किसके अंडर होंगे, ठीक है। अथोराइज्ड जो पर्सन होगा वही उसको लॉक इन की उसको ओपन करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करेगा, उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग फिर उतनी ही डोज उसको पेशेंट को देगा और वो फिर उसको एडमिनिस्टर की जाएगी। So safe storage is very important regarding controlled drugs and narcotics. Regulatory and legal requirements. Every hospital must comply with the national laws and regulations which may vary by country. In many jurisdictions, controlled substances are regulated under. If you will see, according to the country, there are different acts, there are different rules, there are different regulations. For the US Controlled Substances Act, CSA, enforced by the DEA, Drug Enforcement Administration. This is the US Drug Act, जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस का एक्ट है उनका। और किसने इसको इन्फोर्स करवाया? ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने। इन द यूके, मिसयूज ऑफ ड्रग एक्ट 1971 एंड मिसयूज ऑफ ड्रग रेगुलेशंस 2001। बिकॉज मिसयूज किसका हो रहा है? कंट्रोल्ड ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का। कब मिसयूज ऑफ ड्रग उन्होंने एक्ट उसको निकाला, पब्लिश किया 1971 एंड रेगुलेशंस 2001। ऑस्ट्रेलिया, थेराप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट स्पेसिफिक लॉज, थेराप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट स्पेसिफिक लॉज ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा, कंट्रोल ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट, कनाडा में कंट्रोल ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट है। और पाकिस्तान में कंट्रोल ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट 1997। यू नो अबाउट इट, फोरेंसिक फार्मेसी में आपने पढ़ा होगा कंट्रोल ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट 1997, ठीक है। वो उसके अंदर डिटेल दी हुई है, कितने ग्राम अगर होगा उससे बियॉन्ड होगा तो इतनी पनिशमेंट होगी, इतनी पेनल्टी होगी। अगर किसी के पास इतनी ज्यादा प्रेजेंट है ओपीएम या उससे बियॉन्ड है तो उसको कितनी पेनल्टी होगी, साथ उसको फाइन होगा। तो ये सब चीजें जो है वो एक्ट में लिखी होती हैं जिससे कंप्लाई करना होता है। इवन हॉस्पिटल के अंदर, यू विजिट एनी हॉस्पिटल, you will see there are different cabinets even in the main medicine store। control drugs and narcotics के लिए आपको एक अलग से कबर्ड स्पेसिफाई की गई होगी, उसके अंदर उसकी प्लेसमेंट होगी, उसके बाहर लेबल्स होंगे, उसको प्रॉपर लॉक किया गया होगा और वो जो की होगी वो फार्मासिस्ट के पास होगी, ठीक है। और प्रॉपर वो उसको ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसका मिसयूज है, उसका अब्यूज है, उसके एडिक्ट्स हैं, और ये अब्यूजर्स जो है वो फिर बहुत आगे तक जाते हैं और इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह ये सब कुछ बनाया गया होता है। तो हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे उसको स्टॉप करना है। Where you are working either in a retail pharmacy, you are working either as a hospital pharmacist, you are working either as a clinical pharmacist, whatever your domain is, you should know about the controlled usage of these substances, narcotics and controlled substances. You should know about the difference. You should know about the Schedule G drugs. You should know about the difference between the medical store and pharmacy. In the pharmacy, you can place the Schedule G drugs, but in the medical store, you can't place the Schedule G drugs. ठीक है, तो हमारे पास जो शेड्यूल जी की ड्रग्स होती हैं वो आप मेडिकल स्टोर में प्लेस ही नहीं कर सकते, बिकॉज मेडिकल स्टोर में आपको डिस्पेंसर मिलेगा, फार्मेसी टेक्नीशियन मिलेगा। मेडिकल स्टोर में कैटेगरी बी है, मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, और वो इंश्योर किया जाता है फार्मासिस्ट की सुपरविजन में। फार्मासिस्ट बैठेगा फार्मेसी में तो आप कंट्रोल ड्रग्स एंड नारकोटिक्स की हैंडलिंग वहां पे बेहतर होगी। तो इसलिए शेड्यूल जी की प्लेसमेंट, शेड्यूल जी ड्रग्स जो है आपकी स्पेसिफाई कर दी जाती है कि वो फार्मेसी में प्लेस होंगी, मेडिकल स्टोर में प्लेस नहीं होंगी। सेफ स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल्स, सेफ स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो हम लोग इसके अंदर सिक्योर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हमने सिक्योर करना है। स्टोरेज लोकेशंस, डेजिग्नेटेड कंट्रोल ड्रग कैबिनेट्स, डेजिग्नेटेड कंट्रोल ड्रग कैबिनेट्स हो, ठीक है, प्रॉपर कैबिनेट्स हो जिसके अंदर वो प्लेस हो मेडिसिन। उसको मेटल से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसको मोस्टली ऐसी होती है हमारे पास जो कवर्ड्स होते हैं वो मेटल की होती है। इवन कि अगर आपके पास नहीं है तो वुडन कवर्ड भी कुछ लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मस्ट हैव अ लॉक विद लिमिटेड एक्सेस, लॉक उसको होगा और एक्सेस लिमिटेड पीपल के लिए होगी, ठीक है। अगर तो एक फार्मासिस्ट एक फार्मेसी में बैठा हुआ है उसके पास एक्सेस होगी या मैक्सिमम स्टाफ नर्स के पास एक्सेस होगी, तो एक्सेस लिमिटेड होती है उसकी। और ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स, कुछ जगहों पे बायोमेट्रिक और पासवर्ड एक्सेस भी होगी, लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर्स में लॉक इन की वाला ही कॉन्सेप्ट है। आपने उसको की किया, अपने पास रखा, और जब प्रिस्क्रिप्शन आती है ऐसी उसको डबल चेक किया, स्टाफ नर्स ने चेक किया, फिर फार्मासिस्ट ने उसको रिव्यू किया कि वाकई ये मेडिसिन लिखी हुई है, हाई अलर्ट मेडिसिन लिखी हुई है, फिर उसको
आपने कबर्ड ओपन की, उस मेडिसिन को निकाला और फिर उसको वेरीफाई किया और फिर जाके स्टाफ नर्स को कहा कि ये पेशेंट को ये मेडिसिन लगनी है और फिर उसने प्रॉपर तरीके से वहां पे चेक करके एडमिनिस्टर किया, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक चेक, डबल चेक इंपॉर्टेंट है कि प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करे, फार्मासिस्ट देखे, फिर स्टाफ नर्स के बाद फार्मासिस्ट और फिर उसको डिस्पेंस किया जाए। Environmental conditions, cabinets should be in low traffic secure areas. कैबिनेट्स जो है ना वो लो ट्रैफिक एरियाज में होने चाहिए, ज्यादा जो रशी एरियाज है यानी कि आप ऐसी जगह पे नहीं प्लेस करते जहां पे लोगों का आना जाना है, ठीक है। आप फार्मेसी है उसके अंदर आपकी एक साइड पे कबर्ड हो, ठीक है, वहां पे लोगों का आना जाना नहीं है। 1 सेकंड दीजिएगा, 1 मिनट मुझे। अच्छा जी, वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज लोकेशंस, कि स्टोरेज की लोकेशन क्या होगी। डेजिग्नेटेड कंट्रोल ड्रग कैबिनेट्स, प्रॉपर जो ड्रग कैबिनेट्स हैं वो ऐसे हो कि ठीक है आपने वहां पे डेजिग्नेटेड हो, उनकी एक्सेस लिमिटेड पीपल के लिए हो, और कैबिनेट्स जो है ना वो लो ट्रैफिक सिक्योर एरियाज के अंदर हो, वहां पे लोगों का आना जाना नहीं हो, ठीक है। तभी आप इंश्योर करा सकते हैं कि वहां पे उनका अब्यूज ना हो, मिसयूज ना हो, क्योंकि जब लोगों की एक्सेस होगी तो लोग जो है उसको तोड़ा भी जा सकता है। तो आपने एक तो ये इंश्योर करवाना है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मस्ट मीट द ड्रग मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस। जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करे। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे कल हमने बहुत डिटेल में बात की है कि जो टेम्परेचर है आपका इन्वायरमेंट का क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर, इस सब टेम्परेचर पे हमने बात किया, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर्स मस्ट प्लेस होने चाहिए, हाइग्रोमीटर के ऊपर आपका टेम्परेचर आना चाहिए ताकि आपकी जो भी मेडिसिन है वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो। ह्यूमिडिटी भी 60% से बिलो होनी चाहिए और वो आपका शो करता है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है वो प्रॉपर शीट के ऊपर, और फार्मासिस्ट उसको काउंटर साइन करता है और फिर उसका हर मंथली रिकॉर्ड मेंटेन करता है। स्टोरेज मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम नॉन कंट्रोल ड्रग्स, ठीक है। जो नॉन कंट्रोल ड्रग्स है उनको तो रैट्स में भी प्लेस किया जाता है, जैसे रिंगरलेक्टेड है, नॉर्मल सलाइन है, इन्फ्यूजन्स है, फ्लैजिल है, सिप्रो है, सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन है। आप प्रॉपर अगर आप देखें ना, आपने अगर फार्मेसीज देखी हैं तो फार्मेसीज को प्रॉपर जो है ना उनके शेल्फ्स होते हैं, उनके ऊपर मेडिसिन को प्लेस किया जाता है, वहां पे उनके टैग्स लगाए जाते हैं, उनको लेबल किया होता है हर एक को, तो वो उनकी स्टोरेज एक डिफरेंट वे में होती है जो कि नॉन कंट्रोल ड्रग्स है। लेकिन कंट्रोल ड्रग्स के केस में हम स्पेसिफाई करते हैं कबर्ड को लॉक होना चाहिए, और ये आप लोग के लिए इस हद तक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग को इस रिक्वायरमेंट का पता हो। यू आर डूइंग जॉब इन एनी कैपेसिटी, रिटेल है, हॉस्पिटल है, और आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। सेफ स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल्स में अगर हम एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो एक्सेस वही बात होगी कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो, ऑथोराइज्ड पर्सनल ओनली, फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट है, नर्सेज है, एनेस्थेटिस्ट है, शुड एक्सेस कंट्रोल ड्रग्स, सिर्फ उनके पास इसकी एक्सेस होनी चाहिए उसका, ताकि मिसयूज हम प्रिवेंट कर सकें। डुअल ऑथराइजेशन रिक्वायर 2 स्टाफ मेंबर्स, सम जुरिस्डिक्शंस रिक्वायर स्टाफ मेंबर्स टू विटनेस हैंडलिंग और डिस्पोजल। मतलब दे आर सेइंग लाइक कि आप अगर हैंडलिंग और डिस्पोजल दोनों चीजें हैं कि हैंडल करना है, एडमिनिस्टर करना है, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो 2 स्टाफ नर्सेज जो है सम जुरिस्डिक्शन में रिक्वायर होती हैं ताकि उसका प्रॉपर इंश्योर किया जाए, उसका किसी किस्म का मिसयूज ना हो। देखें इसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं। आपके पास जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, जो क्रैश कार्ट्स में ड्रग्स होती हैं, अगर आप उनको देखें तो मोस्टली इमरजेंसी ड्रग्स आपको वो मिलती हैं जो कि हाई अलर्ट होती हैं, जिनके नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होते हैं, जो कि इमरजेंसी कंडीशन। तो आप जो वो जो ड्रग्स होती है ना उसके जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, 25% डेक्सट्रोज है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या मैग्नीशियम सल्फेट है। अब उनके आपने एडमिनिस्टर कैसे करना वो भी बहुत मैटर करती है। जैसे पोटेशियम है वो आप उसको इन्फ्यूजन में, स्लो इन्फ्यूजन में देते हो, लेकिन अगर किसी ने उसको एडमिनिस्टर कर दिया है, इंजेक्शन बॉलस दे दिया है, तो क्या होगा, पेशेंट सफर करेगा और बुरी तरह सफर करेगा। और इस पे एक केस भी आया था आई थिंक तो रिसेंटली, अगर आप लोगों ने सुना इस बारे में, कि पोटेशियम क्लोराइड की जो इन्फ्यूजन की बजाय उसको जो है ना वो फास्ट दिया है और उसके रिजल्ट में पेशेंट की डेथ हो गई, ठीक है। पोटेशियम तो थोड़ा सा ज्यादा या कम हो जाए तो एरिथमिया हो जाता है, पेशेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल्स, पर्टिकुलरली जो ड्रग्स जो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स के हैं, उनमें बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रिकॉशियसली और कॉशियसली चलना पड़ता है, बिकॉज अगर आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से ना करें जिस तरह रिक्वायर्ड है तो वो पेशेंट अफेक्ट हो जाता है। डोज थोड़ी ऊपर या नीचे होने से साइड इफेक्ट्स के, टॉक्सिसिटी के चांसेस भर जाते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर ठीक ना हो तो अल्टीमेटली ADR के चांसेस भर जाते हैं, इवन कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
तो सेफ स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल्स में फर्दर एट द एंड क्या चीज है, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. Record keeping is very important because when you are using the control drugs, आप पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं, आपकी विसिनिटी में जो मेडिसिन प्रेजेंट थी उनके अंदर से स्टॉक आउट हो रहा है, आपने उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, आपने मैनुअली भी उसको रिकॉर्ड करना है, आपने डिजिटली भी उसको रिकॉर्ड करना है, सिस्टम के अंदर भी वो एंटर हो जाएगा, आपके रजिस्टर में भी वो एंटर हो जाएगा. ठीक हो गया. तो जब आप उसको प्रॉपर तरीके से एंटर करते हो सिस्टम में, आपके रजिस्टर में आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है और उसके रजिस्टर्स भी सेपरेट होते हैं. ये बात याद रखिएगा कि आप कहीं पर भी जाएं, आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, आप मेन मेडिसिन एज अ विजिटर जाते हैं, एज अ कुलीग जाते हैं, मतलब व्हाटसोएवर योर डोमेन, आप जब जाते हैं तो आप वहां पे देखेंगे कि आपको कंट्रोल ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का रजिस्टर सेपरेट मिलेगा. और अगर कहीं नहीं है तो ये उनके एंड पे नेग्लिजेंस है. क्या उन्होंने क्यों उसको सेपरेट नहीं किया. हमारे हॉस्पिटल में मेन मेडिसिन स्टोर क्या हो, इवन क्या इमरजेंसी फार्मेसी हो, कहीं पर भी तो कंट्रोल ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का रजिस्टर सेपरेट बनाया जाता था. उनकी एंट्री स्पेसिफिकली वो ड्रग्स, नैल्बुफिन हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, जो हाई अलर्ट में आती हैं, कंट्रोल ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स हैं, तो वो सारी डाइजेपाम वगैरह, मैग्नीशियम सल्फेट, प्रोपोफॉल जो एनेस्थेटिक्स वगैरह, तो वो सारे एक ही रजिस्टर में उनको एंटर किया जाता है. वहां पे ही उनकी एंट्री होती है, वहां से ही उनका जो स्टॉक आउट होता है उसको माइनस किया जाता है, प्रॉपर एक्सपेंस उसी में मेंटेन होता है. और उसके अलावा जब फर्दर इमरजेंसी में आप जाते हैं तो इमरजेंसी में भी जो फर्दर एक्सपेंस किया जाता है कि इमरजेंसी में एक एक पेशेंट पे जो ड्रग लग रही है तो उसका भी एक सेपरेट कंट्रोल ड्रग्स का उन्होंने रजिस्टर बनाया होता है. ड्रग का नेम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किस फॉर्म में है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है, वो टेबलेट फॉर्म में है, वो कैप्सूल फॉर्म में है, क्वांटिटी कितनी रिसीव की. ठीक है. अगर इमरजेंसी फार्मेसी के अंदर है तो वो मेडिसिन जो गई वहां से मेन मेडिसिन स्टोर से, तो उनको कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, जो क्वांटिटी उनको रिसीव होती है उसको एंटर करते हैं. उसके बाद पेशेंट को कितनी एडमिनिस्टर हुई, उसके बाद डिस्पोज हुई, अगर डिस्पोज हुई तो उसकी क्या रीजन थी, क्यों डिस्पोज हुई, और डेट क्या है, टाइम क्या है, सिग्नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग स्टाफ, रनिंग बैलेंसेस. ठीक है. डेट किस टाइम पे और जो है ना टाइम डेट ये चीज मेंशन हो, और उस टाइम पे जो स्टाफ एडमिनिस्टर करी है उसके सिग्नेचर हो कि उसने इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया है, उसने इंश्योर किया अपने सिग्नेचर करके कि यस उसने इस पेशेंट को ये मेडिसिन लगाई है, इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया है. और रनिंग बैलेंसेस, जो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बच जाए उस मेडिसिन का, वो आपके पास वो शो हो और आपको उसके साथ सिंक्रोनाइज करे जो आपका फिजिकली प्रेजेंट है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आप इमरजेंसी में देखते हैं और ये इस तरह से चीजें प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो होते, तो यू कैन इम्प्लीमेंट, यू कैन टेल देम कि जस्ट मेक द रजिस्टर इन दिस वे कि आप ड्रग की स्ट्रेंथ, उनकी नेम, उनकी जो है क्वांटिटी जो आपने रिसीव हुई वो आपने एक दफा एंटर कर ली. उसके बाद जब आपको प्रिस्क्रिप्शन आती है पेशेंट की जिस अगेंस्ट आप मेडिसिन देते हैं, तो उस स्टाफ नर्स से इंश्योर करवाएं कि उसने मेडिसिन एडमिनिस्टर किया, उसके सिग्नेचर लें, ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो. इन केस कोई कल को आके ये ना कहे कि ये जो नैल्बुफिन इतने कम है या फिर ये चीज है तो ये क्यों है. ठीक है. तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो और जो आपका बैलेंस रजिस्टर में हो वो आपका जो फिजिकल परा है, फॉर एग्जांपल 10 एल्बिन आपके अगर रजिस्टर में पड़े हैं तो आपके फिजिकली भी 10 परे होने चाहिए, काउंट अगर करें तो वो भी 10 हो, उनमें कोई भी कम या ज्यादा नहीं हो. तो ये आपका एक प्रोटोकॉल है, रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. और पर्टिकुलरली इन ड्रग्स को या इन जो रजिस्टर्स को चेक किया जाता है, अगर कोई आता भी है तो वो पर्टिकुलरली इनको देखता है कि इनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया गया. रिकॉर्ड शुड बी इंडेलिबल एंड एक्यूरेट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि रिमूवेबल हो, किसी ने उसको वाइटनेस किया हुआ है, रिमूव करके चेंजिंग्स की हुई है. प्रॉपर एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए और एटलीस्ट आप उसको मिले 2 to 7 इयर्स के लिए जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए. मतलब एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गया है. फॉर एग्जांपल मेन मेडिसिन स्टोर, लाइक हमारा जो रिकॉर्ड है वो पिछले 5 साल का हमारी एक्सेस में होता था, आप सबमिट करा देते हैं. उन प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिकॉर्ड को रखते हैं और एक प्रॉपर टाइम पीरियड तक अपने पास रखते हैं. अब इसमें ही एक दूसरे एस्पेक्ट से भी मैं आपको बता दूं, रिटेल फार्मेसी के एस्पेक्ट से. आप लोगों के जो कुछ फार्मासिस्ट जो रिटेल एज ए रिटेल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं या दे आर एमिंग टू वर्क इन द रिटेल फार्मेसी, ठीक है, या वो अप्लाई कर रहे हैं, उनका एम है कि उन्हें एज ए रिटेल फार्मासिस्ट काम करना है, तो आप लोगों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी रिटेल फार्मेसी में जाते हैं, आपका
इंपॉर्टेंट रोल ही वहां पे ये है कि आप किस तरह से इन चीजों को मेंटेन करते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल स्टोर एंड फार्मेसी. शेड्यूल जी ड्रग्स, शेड्यूल जी ड्रग्स कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए. फिर आपको ड्रग्स की प्लेसमेंट आप कैसे करवा रहे हैं, वहां पे लेबलिंग कैसे हो रही है, वहां पे जो आपने स्टोरेज डिफरेंट की हुई है कंट्रोल ड्रग्स की, वो आपने स्टोरेज जो है वो आपने अलग किया है कि नहीं किया, और जो वहां पे रजिस्टर आपने मेंटेन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड डिस्पेंसेशन करनी है. प्रिस्क्रिप्शन जब आई और उस प्रिस्क्रिप्शन को अपने पास रखना है एज अ रिकॉर्ड, और सारी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए. और वो ताकि अगर इन केस कोई ड्रग इंस्पेक्टर आता है विजिट करने के लिए फार्मेसी में, तो वहां पे आप अपना रजिस्टर दिखाते हैं कि ये रजिस्टर है नारकोटिक्स का, ये रजिस्टर मैंने मेंटेन किया हुआ है. जब मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आती थी वो पेशेंट का ये नाम है, वो सारा आपने एंटर किया हो, और आपने उस पेशेंट को जितनी मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस की हो उसके अंदर से माइनस करके रिमेनिंग स्टॉक लिखा हो. और वहां पे जो अगर पूछे कि अच्छा ये प्रिस्क्रिप्शन आपके पास फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते में आई है, तो काइंडली मुझे प्रिस्क्रिप्शन चेक कराएं, तो आपके पास वो रिकॉर्ड अवेलेबल हो, आप उसको चेक करवाएं कि ये सर मैंने प्रिस्क्रिप्शन जो है ये वाली है जो आई है मेरे पास. ठीक है, अगर आप उस वक्त वो पेशेंट नहीं रहे, आप उसको एटलीस्ट कॉपी करके किसी भी तरह से अपने पास रिकॉर्ड उसका रखें कि ये प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट आपने डिस्पेंसेशन की है, आपने प्रॉपर रजिस्टर को मेंटेन किया हुआ है. तो ये वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट डोमेन है जो कि फार्मासिस्ट को इंश्योर करवाना चाहिए इन बेस्ट वे. डबल चेक सिस्टम एंड सिक्योर हैंडलिंग. अब डबल चेक सिस्टम नारकोटिक्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है. नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ड्रग्स डबल चेक सिस्टम refers to the safety and compliance procedure in healthcare settings, hospitals, pharmacies, aged care facilities, etc. अब वहां पे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, फार्मेसीज में जाते हैं, जो नारकोटिक्स और कंट्रोल ड्रग्स हैं उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डबल चेक सिस्टम है. क्योंकि एक बंदे से गलती हो सकती है, लेकिन जब दो लोग उसको चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेकिंग हो रही है, वहां पे एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं. वहां पे एरर और रिस्क जो है ना ऑफ एरर वो कम हो जाता है. तो इंश्योर फिर ये करता है एक्यूरेट हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडल हो, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, प्रॉपर उसकी स्टोरेज हो रही है, उसका डिस्पोजल सही हो रहा है हाई रिस्क मेडिकेशंस का. और दिस इज एसेंशियल फॉर मिनिमाइजिंग एरर्स, डाइवर्जन एंड मिसयूज ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस. ठीक है, तो डबल चेक सिस्टम इंश्योर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है. अगर एक फार्मेसी में स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट बैठा है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन जब स्टाफ नर्स देखती है, वो फार्मासिस्ट उसको क्रॉस चेक करता है, उसकी डोज को चेक किया जाता है, वो मेडिसिन क्या लिखी हुई है उसको चेक किया जाता है, पेशेंट की कंडीशन को वेरीफाई किया जाता है. अच्छा पेशेंट की ये कंडीशन है, इसके अंदर ये है, और इन केस अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो उसको डॉक्टर से रीवेरीफाई किया जाता है. जब डॉक्टर उसको वेरीफाई कर दे, फिर स्टाफ नर्स उसको एडमिनिस्टर करती है, और एडमिनिस्टर करने के बाद फिर वो उसको करती है साइन कि यस आई एडमिनिस्टर्ड दिस. अगर ये चीजें इंश्योर होंगी, ये प्रोटोकॉल्स इंश्योर होंगे, तभी मिसयूज कम होगा, तभी अब्यूज कम होगा, तभी एडिक्ट्स कम आएंगे. बिकॉज अब आपको पता है कि फेडरल ने प्रॉपर इसके ऊपर एक फोर्स बनाई है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स. इसके अंदर फार्मासिस्ट को भी अपॉइंट किया है, फार्मासिस्ट के डिफरेंट इंटरव्यूज हुए हैं, फार्मासिस्ट ने अप्लाई किया हुआ था. इवन कि मैंने एक प्रॉपर सेशन लिया था मुझसे लड़कियों ने, जिसमें मैंने उनके इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई थी. एंटी नार्कोटिक्स एक्ट जो है वो कहते हैं फेडरल की तरफ से सीट्स आई हैं जिसमें उन्होंने अप्लाई किया हुआ है. तो एक प्रॉपर इसकी फोर्स बनी है, बिकॉज इसके मिसयूज को खत्म करने के लिए, अब्यूज को खत्म करने के लिए, कि हर लेवल पे जो नारकोटिक्स और कंट्रोल ड्रग्स हैं, जो मंशियात का जो यूजेज है, इवन के स्मगलिंग है, इन सबको प्रिवेंट किया जाए. तो आपने अपने लेवल पे काम करना है. ठीक है, तो आप अपने लेवल पे ये चीजें करके इसको इंश्योर करवा सकते हैं. कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डबल चेक सिस्टम. अब कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है डबल चेक सिस्टम के? हमने इंश्योर क्या करवाना है? पेशेंट सेफ्टी. किस तरह इंश्योर होगी कि हमने डोजिंग एरर्स को प्रिवेंट किया, डबल चेक किया, ये जो डोज इंश्योर की कि यही डोज लगनी है उसको. रेगुलेटरी कंप्लायंस, लीगल एंड एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल मेडिकल सेंटर, ऑल दीज एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स मीट हो. अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी हो नारकोटिक्स हैंडलिंग की, कि भाई जो बंदा वहां बैठा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल हो, वो उसका अकाउंटेबल हो, ताकि उसको पता हो वो क्वेश्चनेबल है, वो आंसरेबल है. कोई आके उससे क्वेश्चन करता है तो उसने आंसर करना है, वो आंसरेबल है, वो अकाउंटेबल है. ठीक है, उसकी ट्रेसेबिलिटी की जा रही है, उसको प्रॉपर हैंडलिंग करनी है उसने, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिबल होगा. डाइवर्जन प्रिवेंशन. और इस तरह से जब आप डबल चेक करते हो तो थेफ्ट का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, मिसयूज का रिस्क कम हो जाता है. इवन के स्टाफ खुद भी उसको मिसयूज नहीं कर सकती, खुद भी अब्यूज नहीं कर सकती. जब प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इंश्योर होगी, तो एवरीवन जो है वो उस हवाले से थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेगा
और जो है वो उसका मिसयूज रुक जाएगा, एटलीस्ट खत्म नहीं होगा तो काफी परसेंट तक डिक्रीज हो जाएगा, और यही इंश्योर करवाना है हमने। उसके बाद स्टैंडर्ड डबल चेक प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो क्या है, वही बात आगे के डबल चेक प्रोसीजर्स, उसमें आपको लॉक में रख लिया, आपने सिक्योर कैबिनेट में रख लिया, थोड़ा इस पर्सनल तक उसकी एक्सेस होगी, रेगुलर इन्वेंट्री काउंट करें, मतलब जो स्टाफ नर्स या फार्मासिस्ट है एटलीस्ट करें वो उसका काउंट करवाएं, पर्टिकुलरली फोकस हो उनका नारकोटिक्स कंट्रोल ड्रग्स, जिनको उनको देखें कि हमारे रजिस्टर में इतने हैं, काउंट इतना है, कोई चेंजेस तो नहीं आई, कोई डिफरेंसेस तो नहीं आए, ठीक है। तो जब एक बंदा जा रहा है ड्यूटी से और दूसरा बंदा आ रहा है ड्यूटी पे, जैसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3 शिफ्ट्स में आपके हॉस्पिटल में चल रहा होता है, ठीक है, स्टाफ नर्सेज जो है वो मॉर्निंग में जाती है, फिर इवनिंग एंड नाइट, ठीक है, तो वो आपका जो मॉर्निंग से जो जा रही है तो वो प्रॉपर दे के जाए। एक हम लोगों ने तो एक परफॉर्मा बनवाया था, उस पर फोमा के अंदर मेडिसिन के नेम और उसका जो डेली बेसिस के ऊपर के मॉर्निंग में इतनी इतनी यूज हुई, इस मेडिसिन की इतनी कंजम्पशन थी और अब इतना इतना रिमेनिंग स्टॉक है, और वो जो नेक्स्ट बंदा है उसको बता के जाए कि ये इतनी इतनी मेडिसिन यूज हुई है उस पर फोमा के अकॉर्डिंग, और वो अपने आगे साइन कर दे, और फिर जब नेक्स्ट बंदा आए वो उसको उतना रिसीव करे, अच्छा इतनी इतनी मेडिसिन पड़ी हुई है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग आगे से दे, ताकि वो दूसरा बंदा जो जा रहा है उसको बता के जाए ये इतनी चीज पड़ी हुई है जो आपके हवाले करके जा रहे हो, और जो नेक्स्ट बंदा है वो फिर उसके अकॉर्डिंग देखे कि ये मेरे पास इतनी है और मैंने अगर इतनी दी है तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है, तो वो सारा ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जो जा रहा है बंदा वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि बता के जाए, और जो रिसीव कर रहा है वो भी है कि उसने प्रॉपर तरीके से ओवर लिया कि नहीं लिया। जब प्रॉपर ओवर नहीं लिए जाते, इस तरह ही चले जाता है, इस तरह वो बंदा आ जाता है, उसको पता नहीं होता कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है, और कोई विजिट हो जाए तो वो वहां पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के केस में टू अथोराइज स्टाफ मेंबर्स क्या वेरीफाई करती हैं कि पेशेंट करेक्ट है कि नहीं है, आइदर दिस इज द पेशेंट जिसको हमने एडमिनिस्टर करनी है, ड्रग करेक्ट है कि नहीं है, दिस इज द ड्रग दैट इज गोइंग टू बी एडमिनिस्टर्ड, डोज इतनी ही जानी है, रूट यही यूज होना है, इतने ही टाइम पे लगनी है। तो ये जो मेडिसिन है बेसिकली इस हवाले से जो हमने एक पढ़ा भी था R5 Rs, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट ड्रग, तो ये ऑलमोस्ट उससे ही लिंक कर रहा है कि ये चीजें इंश्योर करवाएंगे हम, ये पर्टिकुलर्स इंश्योर करवाएंगे, तो उसके बाद हम लोग जो है वो क्रॉस चेक फर्दर क्या करते हैं पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन, फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। विटनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली फॉर इंजेक्टेबल्स और पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक्स के सम केसेस में आप स्पेशली जो इंजेक्टेबल्स हैं पेशेंट कंट्रोल्ड एनर्जेटिक है उसकी एक में विटनेस के वो एडमिनिस्टर जो कर रहा है उसको देख रहा है दूसरा बंदा। अच्छा जी, उसके बाद डबल चेक सिस्टम एंड सिक्योर हैंडलिंग के अंदर फर्दर आगे ये डॉक्यूमेंटेशन की बात हम लोगों ने कर ली, डिजिटल सिस्टम की बात होगी। अब इसके अंदर आपका जो ड्रग रजिस्टर है वो बनाया, एक पेशेंट चार्ट बन गया, कंट्रोल ड्रग लॉग बन गया, फर्दर आप इसको और भी इंप्रूव कर सकते हैं। रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करते हैं तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, यानी कि ये बात है कि आपका जैसे जैसे वो गया तो साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि उस टाइम पे नहीं हो रही होती, वो आप रख रहे होते हैं अपने पास और बाद में आप बैठ के उसको कर रहे होते हैं, तो कहते हैं रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इंकरेज करती है टू प्रिवेंट डिस्क्रिपेंसीज। डिस्पोजल वेस्टेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी अनयूज्ड पोर्शन ऑफ अ कंट्रोल ड्रग मस्ट बी विटनेस्ड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय अ सेकंड ऑथराइज्ड पर्सन। अगर ऐसा है कि कंट्रोल ड्रग का कोई अनयूज्ड पोर्शन है जो कि अगर विटनेस करते और डॉक्यूमेंट करते तो कोई सेकंड ऑथराइज्ड पर्सन, या फिर उसकी जो प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल इन ड्रग डिस्ट्रक्शन किट और रिटर्न टू फार्मेसी रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल ड्रग रजिस्टर्ड विद रीजंस। अच्छा जी, डिस्पोजल वेस्टेज में उन्होंने ये बात किया कि अगर आपका कंट्रोल ड्रग का कोई पोर्शन है जो आपने डिस्पोज ऑफ करना है तो उसका एक विटनेस होना चाहिए और वो दूसरा बंदा एक हो जो डॉक्यूमेंट करे उसको। अगर प्रॉपरली उसको डिस्ट्रॉय करना है और आपने एक प्रॉपर किट के अंदर और रिकॉर्ड करना है उसको रीजंस में, ठीक है। आप प्रॉपर डिस्पोजल के ना प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट एसओपीज होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आपने कोई चीज डिस्पोज ऑफ करनी है उसके क्या प्रोसीजर्स है, ठीक है, और क्या उसकी रीजन है जो आप उसको डिस्पोज ऑफ करें, आपने रीजन को रिकॉर्ड करना है। देखें, आप अगर एक पेशेंट का एडमिनिस्टर होगी तो वो ठीक है, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन अगर आप किसी को वेस्ट कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या रीजन है कि ऐसा क्या हुआ, या फिर उसकी वाइल थोड़ी टूट गई, ऊपर से उसमें जो है वो कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी रीजन है तो आप उसको मेंशन करें, दिस इज द रीजन दैट यू आर गोइंग टू डिस्पोज ऑफ। उसके बाद हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप जब भी प्रोक्योरमेंट करते हैं ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली फार्मासिस्ट जो है वो ऑर्डर करता है कंट्रोल
सब्सटेंसेस, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, की डिमांड आई डिपार्टमेंट से, अच्छा ये डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग फिर फार्मासिस्ट ने फर्दर डिमांड जनरेट करके प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो वो आप जब डिमांड भी देते हो सेंट्रल लेवल पे है या लोकल लेवल पे है, तो डिमांड फार्मासिस्ट जनरेट करता है, फार्मासिस्ट पाइनियर है, फार्मासिस्ट उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेपरेट इन्वेंटरीज आर मेंटेन फॉर शेड्यूल 2 वर्सेस शेड्यूल 3 5 सब्सटेंसेस, ठीक है। आप सेपरेटली उसको उनकी इन्वेंटरीज मेंटेन करते हो कि ये हमारे पास इस शेड्यूल की ड्रग्स हैं, ये उस शेड्यूल की ड्रग्स हैं, ठीक है। तो वो पोटेंसी के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन की बेस पे आपके शेड्यूल की जो डिफरेंट ड्रग्स हैं वो होती हैं। सिक्योर स्टोरेज इन लॉक्ड कैबिनेट्स और सेफ्स विद लिमिटेड एक्सेस, वही बात होगी, रिपीट हो रही है ये बातें, लेकिन अल्टीमेटली प्रोक्योरमेंट और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर भी फार्मासिस्ट का रोल है, ठीक है। यू आर द लीडर, यू आर द मैनेजर, यू हैव द मल्टी डायमेंशनल रोल्स, ठीक है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपकी कितनी पावर होती है, आपकी कितने इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, बस आपको उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। और वो यूटिलाइज आप कैसे करेंगे? व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ठीक है। जब आपका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा होता है, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है दैट यू आर एलिजिबल टू डू दिस, और आप उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जब नॉलेज नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको एसओपीज का नहीं पता, आपको प्रोसीजर्स का नहीं पता, आपको डिफरेंट डायरेक्शंस का नहीं पता, आपको पता नहीं है कि आपने इस चीज को कैसे लेके चलना है, आपको कोई रिक्वायरमेंट्स किसी किस्म की अगर पता ही नहीं है चीजों का, तो आप ब्लैंक है, जो आपको कोई जैसे चलाएगा वैसे चल जाएंगे, ठीक है। इवन के स्टोर कीपर आपको बताएगा अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, तो अच्छा आप कहेंगे अच्छा ऐसे होता है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने माइंड से जब तक नहीं सोचेंगे, आप अपना बैकग्राउंड नॉलेज जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, तब तक आप एक ट्रैक सेट नहीं कर सकते, तब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी कोई नई इंटरवेंशन नहीं कर सकते, आप कोई नई अप्रोच नहीं ला सकते, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कहीं जाते हैं, किसी सिस्टम में जाते हैं, आपकी नो हाउ हो हर एस्पेक्ट से। ये जो 3 डेज का हमारा सेशन है, अगर कोई इसको बहुत ध्यान से सुनेगा तो लिटरली ही और शी विल बी एलिजिबल कि वो किसी भी सेटअप में जाके बहुत अच्छे से हर चीज टैकल कर सकेंगे। एलपी क्या है, बल्क क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट क्या है, एक्सपायरी के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, फीफो रूल क्या है, आपके यहाँ पे कंट्रोल ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स की हैंडलिंग क्या है, आगे लासा और हाई अलर्ट, एंड कल हम लोगों ने एडीआर, ब्लैक बॉक्स वार्निंग, जो सारी चीजें हर एस्पेक्ट से एक हॉस्पिटल में क्लिनिकली या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको डील करता है, वो सब डिस्कस किए हैं। और आप लोग इतने इनफ एलिजिबल होंगे और डिस्टिंक्ट करेंगे दूसरों से कि जब आप बैठे होंगे तो आप किसी को सिखा रहे होंगे, कि एक ट्रैक पे ला रहे होंगे और अपने अकॉर्डिंग एक लीडरशिप लेके जा रहे होंगे। देखिए लीडर वो होता है जो किसी को सिखाता है, किसी को बताता है, और दूसरे लोग फिर कहते हैं यस हमने इसको फॉलो करना है बिकॉज ये सही बात कह रहा है, हम इसके अंडर या इसके पीछे चल रहे हैं। तो आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें। फर्दर यही रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आपने रिकॉर्ड्स एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए तो रखने हैं, और ताकि डाइवर्जन मिसयूज ना हो, डाइवर्जन कंट्रोल प्रोग्राम्स। यहाँ तक हमारा कंट्रोल ड्रग्स एंड हाई अलर्ट्स खत्म हो गया, मेडिकेशंस, कंट्रोल ड्रग्स पर्टिकुलरली एंड नार्कोटिक्स वो हमने खत्म कर लिया। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं लासा एंड हाई अलर्ट पे। लासा एंड हाई अलर्ट मेडिसिन, ठीक है। अच्छा जी, लासा क्या मेडिसिन हैं? हम व्हाई वी आर सेइंग लासा? Lassa medicines are drugs that are visually similar in packaging or labeling, look alike or have names that sound similar when spoken, sound alike, leading to a high risk of medication errors in prescribing, dispensing and administration. अब ऐसा है कि कुछ मेडिसिन बिल्कुल दिखने में एक तरह की होंगी, लुक अलाइक, कुछ सुनने में लाइक साउंड अलाइक। अब यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत भर जाते हैं, ठीक है। आपको किसी ने हाइड्रोक्साजिन बोला, आपको हाइड्रालाजिन सुनाई दिया, ठीक है, साउंड लाइक है ना, सिमिलर साउंड आ रहा है, ठीक है। अब उसके बेस में आपने उसको हाइड्रोक्साजिन की बजाय हाइड्रालाजिन पकड़ा दी। अब उसने भी आगे से वेरीफाई नहीं किया और स्टाफ नर्स को दे दिया कि ये मेडिसिन आप कर दें एडमिनिस्टर। उसने भी जल्दी में प्रिस्क्रिप्शन को देखा नहीं और उसने पकड़ के वो मेडिसिन लगा दी, ठीक है। अब जो हाई अलर्ट हुई साथ वो और साथ लासा भी हुई, ठीक है, और वो पेशेंट को एडमिनिस्टर होगी, तो पेशेंट जो उसने रिलीफ होना था एक मेडिसिन से, वो तो उल्टा किसी और मसले में चले गया। फॉर एग्जांपल कोई और उसको साइड इफेक्ट्स आ गए। तो यहाँ पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको कैसे इंश्योर करना है कि ये लासा ड्रग्स की वजह से
कोई एरर्स ना आए, लासा ड्रग्स की वजह से पेशेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो लासा मेडिसिन जो कि विजुअली सिमिलर दिख रहे हैं या फिर वो साउंड लाइक हैं, इसलिए हम उनको वर्ड कह रहे हैं लासा लुक अलाइक साउंड अलाइक। तो ये हाई रिस्क ऑफ मेडिकेशन लेके जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है, डिस्पेंसेशन में भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम डॉक्टर लिख रहा है, वो लिखते हुए उसका ऐसे पेन चलता है कि समटाइम दरमियान वाले तो वर्ड्स वैसे ही समझ नहीं आ रहे होते, आखिर वाले दो समझ आ रहे हैं या स्टार्ट वाले समझ आ रहे होते हैं, तो वो फिर समझने में भी अगला बंदा ये समझता है अच्छा ये लिखा हुआ है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग वहां पे इशू आ सकता है, डिस्पेंसेशन वहां पे इशू, इवन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो यहाँ पे किसी लेवल पे भी इशू होगा, अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन में इशू आएगा। Why LASA medicines matter in hospital settings? Because LASA errors are a major patient safety concern. ठीक है, इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है, चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, सेटअप्स बहुत चेंज हो गए हैं। अगर आप लोगों ने विजिट किया हो पब्लिक सेक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, आप जाएं, आपको वहां पे क्लीनलीनेस मिलेगी। मैं डीएचक्यूज टीएचक्यूज की बात करी हूँ, नॉट स्पेशलाइज्ड, बिकॉज आई एम कंसर्न्ड विद द हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। I have seen many DHQs and THQs. I have worked in THQs and DHQs. ठीक है, तो मुझे उससे रिलेटेड मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप किसी DHQ में चले जाएं या किसी THQ में चले जाएं, वहां पे जाके आप देखें, उनकी कबर्ड्स देखें, उनकी क्रैश कार्ड्स देखें, उनकी लेबलिंग देखें। इसको इस हद तक इंश्योर किया गया कि प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोल विंग, डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल विंग हमारा जो लाहौर में है, वहां से हमें पार्सल हुए लेबल्स हाईलाइट मेडिसिन के, लासा के, उस तरह से स्टिकर्स बनवा के उन्होंने जो है वो मेडिसिन के लासा के लिए आपने येलो, जो लासा है आप उनको येलो जो है वो लेबल्स लगाएं, उसके ऊपर लासा मेडिसिन। हाईलाइट के लिए रेड प्रॉपर लेबल्स, उसके ऊपर हाईलाइट लिखा हुआ कि जो रेड आपके हाईलाइट है उसके ऊपर ये लेबल्स लगाएं। ठीक है, आपकी कुछ ऐसी जो और हाई रिस्क मेडिसिन या उसके अलावा किसी तरह के हो तो वो भी लेबल्स उन्होंने हमें भेजे। ठीक है, वहां से लाहौर से हर फैसिलिटी को लेबल्स तक प्रोवाइड किए गए। और तो और क्रैश कार्ड्स के ड्रॉर के हिसाब से भी डिवाइड किए पोर्शंस के, फर्स्ट ड्रॉर में आपने मेडिसिन ये रखनी है, सेकंड ड्रॉर में आपके इन्फ्यूजन आएंगी, या थर्ड ड्रॉर में आपके जो है ना वो रिंगर लेक्टेड नॉर्मल साइन आप रख लें, फोर्थ में आप किट्स वगैरह रखें अपनी, एरेनिंजोस्कोप हो गया, ठीक है, आपके डिफरेंट हाइग्रोमीटर या जो होते हैं आपके सिग्मा मैनोमीटर, जो कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप उसको प्लेस करें। तो उस हिसाब से डोर्स में आपने क्या क्या प्लेस करना है वो भी लेबल्स बनवा के उन्होंने हमें वहां पे भेजे कि अब आगे से आप फर्दर इसको खुद ही डिजाइन करें। उन्होंने हमें एक टेम्पलेट दे दिया। ठीक है, आपको बताने का पर्पज ये है कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि हर एक वर्ड के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन हो। एक वर्ड में आप जा रहे हैं, आपको फर्स्ट में कोई और चीज मिल रही है, सेकंड में आपको कोई और चीज मिल रही है, आप दूसरी वर्ड में जा रहे हैं, वहां पे भी ड्रॉर्स के अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इमरजेंसी ट्रे के अंदर कोई लेबलिंग नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है मेडिसिन की, तो एरर तो बहुत भर जाएगा। वहां पे इतनी जल्दी होती है, जब एक इमरजेंसी कंडीशन आती है, पेशेंट आता है और डॉक्टर साथ ही कहते हैं जल्दी डोब्यूटामिन दें या फिर एड्रीनालिन दें, जल्दी करें, और वहां पे अगर एड्रीनालिन की एम्प्यूल और डाइक्लो की एम्प्यूल बिल्कुल सेम साथ साथ पड़ी होगी तो वो और लेबल नहीं है प्रॉपर, तो स्टाफ अगर डाइक्लो उठा के दे रही है तो एट दैट टाइम क्या इतना टाइम होगा पेशेंट के पास कि वो डाइक्लो दे और उसके बाद पता ही ना हो कि भाई एड्रीनालिन लगे हैं डाइक्लो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है पेशेंट सेफ्टी के लिए कि इसको सेंट्रली वहां पे वर्किंग हुई, और हमारे हर डीएचक्यूज टीएचक्यूज के अंदर ड्रॉर वाइज कि किस तरह चीजें अरेंज होनी है, उसके ऊपर हमने ट्रेनिंग्स कराई स्टाफ नर्सेज को, फिर वो सारे लेबल्स हमने फर्दर उसके सैंपल्स को लेके फिर हमने और अपने हिसाब से प्रिंटिंग्स करवाई कि हमारे सेटअप में, हमारे हॉस्पिटल के अंदर कितनी क्रैश कॉर्ड्स है, कितनी इमरजेंसी ट्रेज होंगी, उस हिसाब से कितने हमें रिक्वायर है, फिर हमने उसको प्रिंटिंग करवाई और फिर हमने हर जगह वो इंश्योर करवाया ताकि जहां पे भी कोई जाए तो एक तरह की चीजें मिले। ड्रॉर 1 में, ड्रॉर 2 में क्या प्लेसमेंट है, और जो इमरजेंसी ट्रे लासा है, हाई अलर्ट है, उसके एक ही तरह के लेबल्स हो, येलो कलर के लासा के हैं, हाई अलर्ट के आपके रेड है, और जो हाई अलर्ट के साथ लासा है तो उस पर दोनों। तो इस तरह से चीजों को इंश्योर किया गया हॉस्पिटल्स के अंदर ताकि पेशेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो। We all are working a lot. फार्मासिस्ट भी आपके प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, आपके सेंट्रल लेवल के ऊपर, एवरी लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वर्किंग हो रही है, और हर बंदा अपने हिसाब से ऐसी वर्किंग करे कि किसी ना किसी तरह हम लोग अल्टीमेटली पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करें, क्वालिटी अच्छी करें। ठीक है, और ये लासा एरर्स मेजर पेशेंट सेफ्टी कंसर्न है, और एरर्स अल्टीमेटली रॉन्ग ड्रग होगी या रॉन्ग डोज होगी या फिर रॉन्ग पेशेंट हो गया।
किसी भी एस्पेक्ट से पेशेंट सफर करेगा, और जब पेशेंट सफर करेगा या पेशेंट कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर एक पेशेंट अल्टीमेटली आ रहा है आपके पास सही होने, वो एक उम्मीद लेके आ रहा है, तो अगर वो सफर कर जाएगा उल्टा, तो दैट्स नॉट द राइट। अब कॉमन इन हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स, और ये ज्यादा हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स जैसे कि इमरजेंसी रूम्स हैं, आईसीयूज हैं, पेशेंट वेंटिलेटर से पड़े हुए हैं, ऑपरेटिंग रूम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहां पे एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऑपरेशन थिएटर में अचानक ही पेशेंट की कंडीशन जो है वो सेंसिटिव हो सकती है, सीरियस हो सकती है। उस वक्त डॉक्टर कह रहा है मुझे ये मेडिसिन दें, जल्दी निकाल के दें, तो उस टाइम पे अगर लेबल हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है हर चीज, तो वो आसानी है। अदरवाइज पेशेंट सफर कर सकता है और अल्टीमेटली स्टाफ भी करता है। लासा एंड हाईलाइट मेडिसिन, अब यहाँ पे कॉमन लासा ड्रग एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस के अंदर, जैसे कि टीनोलोल, इमलोडिपिन, डिल्टियाजिम, डोपामिन। ये आपके कुछ सिमिलर दिखती हैं और कुछ सुनाई देती हैं, जैसी एंटीबायोटिक, सिप्रोसेफ्ट्राक्सोन, वैंकोमाइसिन, वैंकोसिन, हार्मोनल मेडिसिन, लिवोथायरोक्सिन, लिवोथायरोनिन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल, पेन मैनेजमेंट में मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीमॉर्फोन। तो कुछ हद तक जो सिमिलरिटी इनकी साउंड लाइक या लुक लाइक में है, तो उस बेस के ऊपर ये कुछ मेडिसिन मैंने ऐड की हैं। ये एग्जांपल्स हैं, बेसिकली ये हाईलाइट करती हैं कि कंफ्यूजन का पोटेंशियल है, प्रिस्क्राइबिंग में भी है, डिस्पेंसिंग में भी हो सकती है। तो यहाँ पे लासा की अवेयरनेस देनी है। आप लोगों ने अपने लेवल पे ये करना है, बीइंग अ फार्मासिस्ट, कि आप स्टाफ नर्सिस को अवेयर करें, दीज आर द लासा, ठीक है। और आपने लासा को पहले तो आइडेंटिफाई करना है अपने हॉस्पिटल में कि हमारे मेन मेडिसिन स्टोर में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एक जैसी दिख रही है, या लिस्ट चेक करें मेडिसिन की, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनका साउंड एक जैसा हो रहा है, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करके आपने अपनी लिस्ट डेवलप करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने गूगल में सर्च किया, आपने ड्राफ्ट की वेबसाइट पे गए और आपने देख लिया अच्छा ये लासा मेडिसिन है, उसको निकाला और पेस्ट करके हर वार्ड में लगवा दिया, भाई लासा मेडिसिन की लिस्ट मैंने प्लेस करवा दी। आपने अपने हॉस्पिटल में देखना है, अपने लोकल लेवल पे देखना है कि आपके हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो लासा है। हर हॉस्पिटल में वेरिएशन है, ठीक है। आप अपने हॉस्पिटल में देखें, जैसे समटाइम मैं डाइक्लो और देखती थी, और साथ एक और एविल है, उनकी एम्प्यूल बहुत सिमिलर होती थी, साइज ऑलमोस्ट सेम होता था, ठीक है। तो आप देखें कि आपके हॉस्पिटल में लुक लाइक कौन सी है, साउंड लाइक कौन सी, आप उस हिसाब से लिस्ट डेवलप करें, स्टाफ नर्सेस को गाइड करें, ट्रेन करें, फिर उसको प्लेस करवाएं हर जगह पर, ताकि उसके केस में थोड़ा सा वो अलर्ट रहे, और उसको प्रॉपर लेबल करवाएं, उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी फासले से करवाएं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना करें आप कि एक आपको दो बिल्कुल एक जैसे दिख रही है और आपने इनको साथ साथ प्लेस किया हुआ है। आप एक को अगर एक साइड पे प्लेस करें, दूसरे को दूसरे कोने में, दूसरे ड्रॉर में प्लेस करवाएं, ताकि डिफरेंस हो, उनकी टैग भी वहां पे क्लियर हो, उनका लेबल भी हो, और वहां पे उनकी सेपरेशन भी हो, ताकि एक की जगह दूसरी की जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से वो उठाना दी जाए। उसके बाद लासा एंड हाईलाइट मेडिसिन में फर्दर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है अवेयरनेस लासा इश्यूज ग्लोबली, बिकॉज ग्लोबल लेवल के ऊपर ये इशू है, इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंड करती है मेंटेनिंग अ लासा ड्रग लिस्ट विद इन इंस्टीट्यूशंस, आपकी अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर कि आपकी लासा ड्रग लिस्ट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, वार्ड लेवल पे भी होनी चाहिए, आपके मेन मेडिसिन स्टोर में भी होनी चाहिए। आपके मेन मेडिसिन स्टोर में इवन की डिफरेंट एक कैबिनेट से शेल्फ हो, जहाँ पे आप लासा मेडिसिन उनकी प्रॉपर लेबलिंग करें, उनकी प्लेसमेंट करें, और वहां पे लिस्ट एक प्रॉपर प्लेस करवाएं, आपको पता हो कि ये लासा है। अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेट फार्मेसी लेवल पे होगा, लेकिन वहां पे भी प्रॉपर इंश्योर करवाएं, अवेयरनेस दें, ट्रेनिंग दें। Joint Commission requires hospitals to identify and take actions to prevent LASA errors. अब वो ज्वाइंट कमीशन हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करता है, उन्हें कहता है कि आप एक्शंस लें ताकि लासा एरर्स प्रिवेंट किए जा सके, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स और मेडिकेशन पब्लिश करती है रेगुलरली अपडेटेड लासा लिस्ट, कि जो उन्हें लगता है कि ये मेडिसिन ऐसी आ रही हैं जो सिमिलर विजुअल है या फिर साउंड लाइक है, तो उस हिसाब से वो अपडेटेड लिस्ट को भी रेगुलरली पब्लिश करते हैं। रिकमेंड करती हैं स्ट्रैटेजीज लाइक टोल मैन लेटरिंग। टोल मैन लेटरिंग क्या है? बेसिकली लेटरिंग ये है कि समटाइम देखें आपका जो मिड वाले वर्ड्स हैं वो डिफर कर रहे हैं, एंड वाले सेम है, जैसे डोपामीन, डो ब्यूटामीन। अब डोपामीन के अंदर अमीन और अमीन एंड पे सेम है, स्टार्टिंग में डो भी सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? पी में और वहां पे बेट में। तो उनके लेटर्स को कुछ टॉल कर दे ताकि वहां पे डिफरेंस क्लियर हो कि डोपामीन ये है, डोब्यूटामीन ये है। यहाँ पे टॉल मैन लेटरिंग आ जाती है कि वो लेटर्स को टॉल कर दिया जाता है जो कि उनमें डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ताकि पता चले डोपामीन और डोब्यूटामीन बेसिकली यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, वो टॉल कर दिए जाते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए उस एस्पेक्ट से। Strategies to prevent LASA medication errors.
What are the strategies to prevent LASA medication errors? फर्स्ट इज द टोलमैन लैटरिंग, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस की कि हम लोग हाईलाइट कर देते हैं वो ड्रग के पार्ट्स, उस ड्रग नेम के पार्ट्स, टू डिफरेंशिएट सिमिलर नेम्स, ताकि हमें वो सिमिलर ना लगे, उनकी वो सिमिलर है नहीं लेकिन उनको समटाइम वो सिमिलर दिख रहे होते हैं कि या सुनाई दे रहे होते हैं सिमिलर। हाइड्रोक्सीजीन है, हाइड्रालाजीन है, इनमें डिफरेंस क्या है ऑक्सी में और एला में? एंड पे जीन भी सेम है और स्टार्टिंग में हाइड भी सेम है, हाइड्रा। तो हाइड्रोक्सीजीन और हाइड्रालाजीन में जो वर्ड्स डिफरेंशिएट करें उनको टॉल कर दिए ताकि वो सिमिलर नेम्स आपस में डिफरेंशिएट कर सके और लासा एरर को प्रिवेंट किया जा सके। सेकेंड इज द स्टोरेज एंड लेबलिंग प्रैक्टिसेस। स्टोरेज एंड लेबलिंग प्रैक्टिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेट स्टोरेज ऑफ लासा ड्रग्स, लासा ड्रग्स की सेपरेट स्टोरेज इंश्योर होनी चाहिए, ठीक है? आप सेपरेटली उसको स्टोर करें, आप चाहे जहां प्लेस करें मेन मेडिसिन स्टोर में या वहां पे, तो आप उस हिसाब से उनको लेबल करें। यूज ऑफ वार्निंग लेबल्स और स्टिकर्स, आप उस हिसाब से स्टिकर यूज कर सकते हैं, हाई अलर्ट है या फिर लासा है, आप उस हिसाब से उनको लेबल्स लगा सकते हैं। बारकोड स्कैनिंग फॉर डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो एक हो सकता है बारकोड स्कैनिंग, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पे होता है, हमारे पब्लिक सेक्टर्स में नहीं होता। प्रिस्क्राइबिंग सेफ गार्ड्स, आप जेनेरिक और ब्रांड नेम्स ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। देखें समटाइम डॉक्टर तो समटाइम जस्ट ब्रांड लिख देता है या जेनेरिक लिख देता है, तो वहां पे भी सिमिलैरिटी आ सकती है, तो वो उसको प्रॉपर करने के लिए वो जेनेरिक और ब्रांड नेम दोनों का यूज करें। इंक्लूड इंडिकेशन फॉर यूज ऑन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन पे यूज का इंडिकेशन लिख सकता है कि क्यों ये लिखी जा रही है। देखें अगर समटाइम अगर मेडिसिन को रीड करने में या प्रिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करने में इशू हो रहा है, लेकिन साथ अगर ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर डायग्नोसिस लिखा हुआ है, उन्होंने इंडिकेशन लिखी हुई है कि इसमें यूज होनी है, तो वहां पे भी एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप देखते हो अच्छा ये हमारे पास जो है ना एम्लोडिपिन है या एटिनोलोल है फॉर एग्जांपल, अच्छा ये एंटी हाइपरटेंसिव में जाती है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट का क्या एज एंटी हाइपरटेंसिव, तो वहां पे क्लैरिटी आ गई कि अच्छा ये इसकी इंडिकेशन है और ये चीज इसी इंडिकेशन में जाती है, तो वहां पे भी एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अवॉइड वर्बल ऑर्डर इज इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली जब आप रिटर्न करते हो एक चीज डॉक्यूमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, वर्बल ऑर्डर्स को अवॉइड करना चाहिए। रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एंड मेडिकेशन सेफ्टी कमेटीज, हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या रोल है, मेडिकेशन सेफ्टी कमेटीज का क्या रोल है, क्या होना चाहिए, वो क्या करना चाहिए उन्हें कि एटलीस्ट उन्हें एक अपडेटेड लासा मेडिकेशन लिस्ट को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? आप अगर देखें तो फार्मासिस्ट जो है डिफरेंट कमेटीज होती हैं आपके हॉस्पिटल में। आप फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है, फार्माकोविजिलेंस कमेटी है। फार्माकोविजिलेंस अब आजकल तो रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी से। तो आप कोई भी कमेटी जो है उसकी मीटिंग बिठाएं, ठीक है? आप उसमें डिस्कशंस करें, आप डॉक्टर्स की ओपिनियन लें, स्टाफ नर्सेज की ओपिनियन लें, और आपने कोई भी काम करना है आप उनकी इंटरवेंशन लें और फिर आप उसको प्रोसीड करें और देन आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। देखिए चीजें चलती हैं ऐसे, इट्स ट्रायंगल, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सेज एंड डॉक्टर्स, और इस ट्रायंगल में एक दूसरे के साथ लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ट्रायंगल ब्रेक कर जाएगी, और जब वो ब्रेक कर जाएगी और होल्स क्रिएट हो जाएंगे देन इश्यूज क्रिएट होंगे। आपने अपना लाइजोन बनाना है, आपने अपने लिंक्स बनाने हैं स्टाफ नर्सेज के साथ भी, डॉक्टर्स के साथ भी, और आपने बहुत एहतियात से और बहुत अक्ल से चलना है, ठीक है? आपने अपने आप को ऐसे लेके चलना है कि ना आपका बिहेवियर बोसी हो, ना आपने ज्यादा अंडर आ जाना है, ठीक है? आपने एक इस वे में अपने आप को लेकर चलना है कि क्योंकि देखें समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर्स एज वेल, जब पता चलता है कि एक फार्मासिस्ट जो है उन्हें बुला रही है कि मीटिंग में आए, ठीक है? नोटिफिकेशन हमारी से एमएस ऑब्वियसली एमएस ऑफिस ऑर्डर से निकलता है, लेकिन उस मीटिंग की सेक्रेटरी एक फार्मासिस्ट है, ठीक है? एमएस इज द चेयरमैन, DMS is the co-chairman and secretary is the pharmacist या pharmacy manager. Yeah, I have been the secretary of the meetings like pharmacovigilance की, pharmacy and therapeutic committee की, मैं secretary होती थी meetings की। तो because मैं pharmacy manager भी almost 6 months रही हूँ ननकाना में, उससे पहले CPP हो रही हूँ, तो मैं pharmacovigilance committee meeting की secretary होती थी। pharmacy manager थी तो pharmacy and therapeutic committee की। तो मैं जब आपको डॉक्टर्स या कंसल्टेंट्स को पता होता है कि भाई सेक्रेटरी इज द फार्मासिस्ट एंड दे आर कॉलिंग अस लाइक कि हम अब जाएं इनकी मीटिंग अटेंड करें, और कंसल्टेंट्स को बुलाया जा रहा है, हर जो ग्रुप में से एक कंसल्टेंट या एक फिजिशियन एमओ या WMO हमने लिया होता है, ताकि हम जब डिस्कस करें मीटिंग में तो हर डोमेन से एक बंदा हो हमारे साथ, ठीक है? ताकि हमने जब भी कोई डिस्कशन करनी है, पीट्स है, गायनी है, तो हमारे पास जब हर डोमेन का बंदा होगा तो हमारी डिस्कशन एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगी और हर डिपार्टमेंट में वो चीज इंप्लीमेंट हो।
तो वहां पे थोड़ा इशू भी आता है। तो मैं तो एमएस ऑफिस में जाके बैठी, यस एमएस आपको कि सर बुलाएं सबको, ठीक है, अगर अभी नहीं भी आए तो इंश्योर करवाएं। और अगर नहीं आए हुए थे कुछ लोग तो उसको बुलवाते थे प्रॉपर, और फिर सब लोग आते थे और फिर मीटिंग होती थी। और ये आपने करवाना है, ठीक है, आपने जहां पे भी जाना है मीटिंग्स भी कंडक्ट करवानी है, कहीं पे आपको कोई इशू आए उसको आपने डिस्कस भी करना है, मेडिसिन के हवाले से, यूजेज के हवाले से कोई लिस्ट अपडेट करनी है, और प्रॉपर हर मेडिसिन लिस्ट आप डॉक्टर्स तक अवेलेबल करवाएं, इमरजेंसी के, ओपीडी के, ठीक है, और कहीं डॉक्टर्स के कोई इश्यूज हैं उनको सुने, उनको एड्रेस करवाएं, और इस तरह से अपना एक लाइजन, एक बॉन्ड बनाएं और चीजों को इंश्योर कराएं, प्रॉपर इंप्लीमेंट कराएं। आपने अपडेटेड लासा मेडिकेशन लिस्ट को मेंटेन करवाएं, रिव्यू करें रिपोर्टेड लासा इंसिडेंट्स, ठीक है, आपने ये भी एक बॉन्ड क्रिएट करना है डिफरेंट स्टाफ नर्सेज के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, कि आपने जाके उन्हें बोलना है कि कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, किसी वजह से रिपोर्ट होता है, आपको जरूर बताया जाए, आपके नॉलेज में आना चाहिए, ठीक है। आप चाहे उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना ऑफिस एड्रेस, और ये सब कुछ प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं कि अगर इन केस कोई इशू हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरा ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ पे आए, मेरे पास है, और मुझे डिस्कस करें मेरे साथ, ताकि आप अपने एंड पे सेफ हों कि आपने इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन किया है, और इंसिडेंट्स कोई रिपोर्ट हो वो आप तक आए, फिर आपने उनको आगे से कैसे एड्रेस करवाना है, उनके पीछे क्या रीजंस हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे सॉर्ट करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसको फर्दर हमने कैसे कम करना है, उन इंसिडेंट्स को नहीं होने देना, उसके पीछे फिर आगे फर्दर आपने जो भी प्रोटोकॉल्स लाने हैं, आपने नर्सिस की ट्रेनिंग करवानी है, आपने कोई प्रोटोकॉल्स इंश्योर करवाने हैं, आपने कोई एसओपीज लाने हैं, आपने कोई लेबलिंग, किस तरह से भी जो आपको लगता है कि ये चीजें हो के ये काम इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं, तो आपने वो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें करनी है। इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, वही बात होगी कि आपने इंप्लीमेंट भी करनी है और मॉनिटर भी करनी है कि जो आपने स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर रहे हैं कि मिटिगेट करें इंसिडेंट्स को, तो वो आपकी स्ट्रैटेजीज आपने इंप्लीमेंट करवाई हैं, उसके बाद उनका क्या फर्दर रिजल्ट है, क्या आउटकम है, उसकी आपने मॉनिटरिंग भी करनी है। रेगुलरली ऑडिट स्टोरेज एरियाज एंड मेडिकेशन कार्ड्स, जो स्टोरेज एरियाज हैं जहाँ पे आपकी मेडिसिन पड़ी हैं उनको ऑडिट करें, वहां पे मेडिकेशन कार्ड्स को चेक करें। देखिए ये आपने एक बात माइंड में रखिएगा, फार्मासिस्ट हैज टू सुपरवाइज, ठीक है, आप एक सुपरवाइजर हैं, आपने मैक्सिमम जगहों पे सुपरविजन करनी है, आपने खुद हर चीज में उस तरह से नहीं अपना काम करना, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपने स्टाफ नर्स को कहना है कि मुझे लिस्ट बनाएं और इसको इंश्योर करवाएं और साइन करें, मैं काउंटर साइन करूंगी, ये मेडिसिन हैं इनको चेक करें, लेबल करें, मैं आऊंगी, मैं क्रॉस चेक करूंगी, ठीक है। ये क्लीनलीनेस एंड ऑल दिस जब आप राउंड करती हैं या कुछ भी, आपने बेसिकली बताना है कि ये चीजें करें और फिर आपने उसको क्रॉस चेक करना है, आपने उसको सुपरवाइज करना है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लासा एरर्स, लासा एरर्स के कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम बात करें तो पेशेंट हार्म और डेथ, ठीक है, और ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है, हमने इसको अवॉइड करना है, इसको होने से रोकना है। लीगल लाइबिलिटी एंड माल प्रैक्टिस क्लेम्स, ठीक है, कोई माल प्रैक्टिस अगर हो रही है कहीं पे तो वो उसकी वजह से हो सकता है। रेगुलेटरी सैंक्शंस, ठीक है, कोई ऐसे सैंक्शंस लग गई हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लासा एरर्स, ये मतलब डैमेज टू हॉस्पिटल रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, अल्टीमेटली आपका हॉस्पिटल इफेक्ट हो रहा है। आप अगर हॉस्पिटल आपका हाईलाइट हो गया बिकॉज कि वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो उसके पीछे फिर सारी टीम जो है वो हाईलाइट हो जाती है, स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, और फिर ब्लेम गेम भी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस चीज को अपने एंड पे मैक्सिमम पॉसिबल ऐसी वर्किंग करनी है कि अगर इनकेस कोई ऐसा मामला हो तो आपकी साइड सेफ हो, आपने ट्रेनिंग्स करवाई हो, आपने वर्कशॉप्स करवाई हो, आपने डॉक्यूमेंटेशन की हो, आपने लेबलिंग हर चीज के हवाले से इंश्योर करवाए हो, और आपने उस चीज को रिकॉर्ड किया हो। मैंने एक मास्टर फाइल बनाई हुई थी ननकाना, मैंने वो मेरी इतनी बड़ी फाइल थी जो जिसके अंदर मैंने अपनी हर डॉक्यूमेंटेशन, उसे मैं मास्टर फाइल कहती थी, हर डॉक्यूमेंटेशन की हुई थी। जहां पे मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई इशू है तो हैव टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप उसको एमएस को लिखना है आप लिखें, आपने सीओ को लिखना है आप लिखें, आपको जहां पे लगता है कि यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, वरना आप पे बात आ सकती है, आप उसको डॉक्यूमेंट करें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक एंड व्हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है, आपने कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट किया है। आपसे कोई क्वेश्चन होता है, अगर आपने वहां पे डॉक्यूमेंट किया, बता सकते हैं मैंने ये किया था, मैंने ये इंश्योर करवाया था, मैंने अपने एंड पे ये सारा किया हुआ है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको बचा लेती, ठीक है। तो बताने का पर्पस ये है, इट्स नॉट द इजी, ये सब
बहुत आसान नहीं है। जब आप बैठते हो एक सेटअप में, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपने मैक्सिमम चीजें इंश्योर करनी होती हैं, आपने अपना इमेज भी सेव करना होता है, आपने अपनी रेपो भी बचानी होती है, और आपने सब चीजों को एक बेस्ट वे में इंश्योर करवाना होता है। तो उसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिक माइंड, स्मार्ट वर्किंग चाहिए होती है। High alert medicines are the drugs that bear a heightened risk of causing significant patient harm if used in error. High alert medicines वही हैं कि एक रिस्क उनका हाई है कि पेशेंट हार्म हो सकता है उसके केस में। आप थोड़ी सी डोज इंक्रीज डिक्रीज कर लें, वहां पे इशू हो सकता है। डाइजॉक्सिन है, उसके ऊपर लिखा होता है पॉइजन है, ठीक है। आपकी डिफरेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आप थोड़ी सी डोज चेंज होने से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज होने से अल्टीमेटली एरर्स हो सकते हैं, पेशेंट मोर सीरियस हो सकता है, इवन के इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद की रेफरेंसेस एंड गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो डिफरेंट की रेफरेंसेस एंड गाइडलाइंस हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द जॉइंट कमीशन, नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स. These are the key references and guidelines that you can study. You can visit these guidelines. And there are some examples of high alert medicines as well. High alert medicines, I have already told you, the medicines with a narrow therapeutic index, the medicines with a minor dose change can lead to severe effects. Insulin in high alert medicines comes under the high alert medicines domain. Insulin regular, insulin aspart, insulin glargine, ठीक है। आपकी जो इंसुलिन होती है, ठीक है, आप उसको जब देते हैं उसकी यूनिट एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी यूनिट एडजस्टमेंट अगर नहीं प्रॉपर है, एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है, उसको बहुत ज्यादा उसका डायबिटीज मतलब शुगर लेवल उसका हाई है, आप उसके केस में अगर इंसुलिन जब आपने देनी है, डॉक्टर पहले स्टार्ट में ऐसे देते हैं, यूनिट्स देते हैं ताकि उसका स्लो स्लो, फॉर एग्जाम्पल उसकी 600 पे शुगर है तो उसकी आ जाए 450 पे आ गई, 400 पे आ गई, मैक्सिमम वो रेगुलर इंसुलिन से कोशिश करें 350 300 तक आ जाए। उसके बाद फिर आप घर लेके जाएं और उसको 70-30 लगाएं, अगर उसकी इंसुलिन 70-30 या फिर कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो उसको ओरली दें, ठीक है। कोशिश यही की जाती है कि इस तरह से मैनेज किया जाए। अगर आप ज्यादा यूनिट्स दे दें, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ चला जाए, और हाइपोग्लाइसीमिया अगर ज्यादा सीवियर हो जाए, आपके ब्रेन को, सेल्स को, हर सेल को हर टाइम पे ग्लूकोज की जरूरत है। और अगर किसी टाइम पे, किसी पॉइंट पे ग्लूकोज नहीं मिलता आपके ब्रेन को, आपके ब्रेन को जब ग्लूकोज नहीं मिलता, वो जो सेल्स है उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है और एक पैरालिसिस की तरफ भी काम जा सकता है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया अगर सीवियर हो गया तो वो एक सीवियर कंडीशन की तरफ पेशेंट जा सकता है। तो हमने हाइपोग्लाइसीमिया होने से बचाना है, हमने प्रॉपर यूनिट एडजस्टमेंट रिक्वायर है, ठीक है। तो इसके केस में इवन के पेशेंट्स भी जब लेते हैं तो उनको प्रॉपर इंसुलिन की यूनिट्स डॉक्टर एडजस्ट करके देते हैं, आपने इतने लगाने इतने लगाने हैं। कहीं पे भी अगर वो ज्यादा लगवाते हैं तो फिर वो समटाइम कहते हैं कि हमें जो है ना लग रहा है कि हमारी शुगर लेवल बहुत लो हो गई है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो उसके यूनिट एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स आपके पास हेपरिन है, वार्फरिन है, एनॉक्सिपैरिन है। दीज आर द ड्रग्स। अब इनके केस में इंट्रैक्शंस भी होती हैं। इनके केस में आप फॉर एग्जांपल कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसके अंदर मैंने बताया था वार्फरिन के साथ अगर आप सेप्ट्रॉन लाइक ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथॉक्साजोल जब आप उसको आप देते हो वार्फरिन के साथ, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जब आपने दिया उसको वार्फरिन के साथ तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ उसके रिजल्ट में कि उसने इंट्रैक्शन की, वार्फरिन डिस्प्लेस हो गई, वार्फरिन का ब्लड में लेवल ज्यादा हो गया, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड हो गया, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ गए, आपको आईएनआर मॉनिटर करने की जरूरत पड़ गई। तो फिर वहां पे इंट्रैक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने ये चीजों को मॉनिटर करना होता है कि कोई भी ऐसी ड्रग तो नहीं साथ जा रही जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, साथ के साइड इफेक्ट्स जो है वो प्रोनाउंस्ड हो गए हैं। तो आपने उस चीज को क्लियर करना है, टैकल करना है, देखना है डोज कि वहां रिक्वायर है या फिर कहाँ पे आपको कोई ड्रग चेंज करने की जरूरत है। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, मिथोट्रेक्सेट, हेवन, क्रिस्टिन, हेवन, लास्ट ये जो आपके पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं ये भी आपके हाईलाइट में आते हैं। ओपियोइड्स, नार्कोटिक्स, मॉर्फिन, फेंटानिल, हाइड्रोमोफोन ये आती हैं हाईलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम क्लोराइड, केसीएल मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी उसकी, मैग्नीशियम सल्फेट आपकी हाईलाइट में आती हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, विक्रोनियम, सक्सिनाइलकोलिन या आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो हैं ये भी हाईलाइट में आते हैं। आप जब देते हैं मोस्टली एक पेशेंट जब सर्जरी प्री जो उसका एक फेस होता है सर्जरी का, तो उसमें स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए पेशेंट को, ताकि जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे अगर डालना है या कोई ऐसा है उसका प्रोसीजर, तो फिर उसके केस में देता है स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है।
मसल्स की पैरालिसिस कर देता है, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देता है। सेडेटिव्स, मिडाजोलैम, प्रोपोफॉल, बिकॉज सिडेट कर देता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। और अगर इसकी थोड़ी सी डोज का इशू हो जाए तो पेशेंट जो है ना, आपने अगर परी हो, फेसिस होती हैं आपकी, फर्स्ट फेज जो है पेन इनहिबिशन है, उसके बाद आगे पेशेंट जो है ना फर्दर एनेस्थेटिक में जाता है, और एनेस्थीसिया से अगर वो अगले फेज पे चला गया तो वहां पे उसकी रिस्पिरेटरी डिप्रेशन स्टार्ट हो सकता है, उसकी रिस्पिरेटरी पैरालिसिस स्टार्ट हो सकती है, तो फर्दर वो खराब हो जाता है काम, पेशेंट जो है वो उसका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सिस्टम। इसके अंदर एक एग्जांपल थी, एक पेशेंट था, वो बेसिकली फैट रिमूव करवाना चाह रहा था अपनी बॉडी से ना, मतलब ओबीस था काफी, वो फैट रिमूव करवाने के लिए उसने सर्जरी करवानी थी। अब उसके केस में एनेस्थीसिया उसको जब दिया गया, एनेस्थीसिया की कुछ डोज का इशू हो गया, कुछ डोज ज्यादा चलेगी। अब एनेस्थीसिया की कुछ डोज जब ज्यादा चलेगी, उसके रिजल्ट में उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम वो अफेक्ट हो गया, बिकॉज आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसका डिप्रेशन हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है रिस्पिरेटरी मसल्स, तो वो अफेक्ट हो गया, और वो पेशेंट ये कंडीशन आ गई उसकी कि वो वेंटिलेटर पर चला गया। अब उसकी कोई मेजर सर्जरी तो नहीं थी, कोई मेजर इशू नहीं था, वो ओबीस था, उसने फैट रिमूव करवाना था, और वो वेंटिलेटर पर चला गया, सिर्फ एनेस्थीसिया की डोज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने से, मतलब थोड़ी ज्यादा होने से। अब लेकिन उस पेशेंट की लक थी, वेंटिलेटर पे गया, फिर उस पे प्रॉपर उन्होंने उसकी बलून्स वगैरह देके उसकी लंग्स की थोड़ी कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश की, मल्टीपल एक्टिविटीज और वो सब कुछ करके अल्टीमेटली पेशेंट वेंट ऑफ हो गया, और उसका आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर गया, ठीक है, उसकी लक थी। बट यहाँ पे एनेस्थीसिया की डोज की वजह से क्या इश्यूज हो सकते हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एनेस्थेटिस्ट प्रॉपर इसके लिए होता है कि वो आके पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी डोज सेट करे। एंटीरिदमिक्स है, एमियोडारोन है, लिडोकेन है। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, आप उसके केस में प्रॉपर एक स्कीम फॉलो करते हैं कि टीपीएन जब बनानी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं आपके, हाइपरटोनिक सेराइम्स। देखिए आप जो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी अगर हम बात करें, जैसे डेक्सट्रोज आपका 5% भी है, 10% भी है, लेकिन उसकी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे उसकी हाईलाइट मतलब लेस रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 25% या 50% डेक्सट्रोज जहाँ पे है ना, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे आपको क्वेश्चन की जरूरत है। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स ये हाईलाइट में आते हैं, तो ये आपको, ये सिर्फ हाईलाइट कुछ मेडिसिन मैंने ऐड किया, लेकिन और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि हाईलाइट में आती हैं। उसके लिए आप लोग जाइएगा, गूगल कीजिएगा, वहां पे लिखिएगा कि ड्रैप की पब्लिश हाईलाइट मेडिसिन लिस्ट, वो आपकी एक ड्रैप पब्लिश लिस्ट निकल आएगी हाईलाइट मेडिसिन की, ठीक है, उसको एटलीस्ट देख लीजिएगा, उसमें जो मेडिसिन है एटलीस्ट मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि आप किसी भी सेटअप में जाते हैं आपके फिंगर टिप पे ये मेडिसिन जो है वो हाईलाइट में होती हैं, और ये लिस्ट जो है ना आपकी जो मेडिसिन आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट है, उसमें उन लिस्ट में से ये मेडिसिन प्रेजेंट है और ये हाईलाइट में आ रही है। और अगर कोई लिस्ट में नहीं भी है लेकिन आपको लग रहा है हाईलाइट, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें, उसको ऐड ऑन करें, और अपने हॉस्पिटल की लिस्ट आपने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, ड्रैप की लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, उसके अंदर है आपको एक पाथ में मिल जाता है, लेकिन आपने अपने हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई करके अपने हॉस्पिटल की लिस्ट लगवानी है, और हर वार्ड में जो जो प्रेजेंट है उस हिसाब से उन्हें कहना है कि वो प्लेस करवाएं। स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट हाईलाइट मेडिकेशन रिस्क्स, अब इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं आपकी कि स्टैंडर्डाइजेशन, यूज प्रोटोकॉल्स, आप ऑर्डर सेट्स, प्रीमिक्स सॉल्यूशंस वेयर एप्लीकेबल, यूनिडोज सिस्टम को इंश्योर करवाएं, आप इंडिपेंडेंट डबल चेक्स करें, डबल वेरिफिकेशंस करें हाईलाइट मेडिसिन के हवाले से, उनकी डिस्पेंसेशन, उनकी प्रिपरेशन, उनके पेरेंटल सॉल्यूशंस, एवरी लेवल के ऊपर जो है ना वो चेक्स हो, लेबलिंग एंड स्टोरेज उनकी प्रॉपर हो, प्रॉपर लेबल हो वार्निंग साइंस के साथ। हाईलाइट है रेड कलर का, रेड कलर हम यूज करते हैं हाईलाइट के लिए, लासा के लिए हम येलो कलर यूज करते हैं। ये आपकी डिफरेंट कलर कोडिंग्स होती है, और आप एक तरह का एक चार्ट भी बनवा के लगवा सकते हैं कि कलर कोडिंग चार्ट, कि आपकी येलो की एक स्ट्रिप बना दो, नीचे लिखें फॉर द लासा ड्रग्स, रेड फॉर द हाईलाइट मेडिसिन, और ब्लू फॉर नियर एक्सपायरी मेडिसिन। हम लोग ये कलर कोडिंग यूज करते थे, येलो हमारी लासा की होती थी, रेड हमारी हाईलाइट की होती थी, और जो ब्लू होती थी वो हमारी नियर एक्सपायरी मेडिसिन की होती थी, ताकि हमारे पता चल जाए आप किसी वार्ड में भी जाते हैं, इमरजेंसी ट्रे है, क्रैश कोड है, उसके अंदर जो ब्लू से लेबल हुआ है कि वो आपकी नेक्स्ट 3 या 6 मंथ्स के अंदर एक्सपायर हो रही है, तो उसको ब्लू से लेबल कर दिया जाए। ठीक है, इवन के मेन मेडिसिन स्टोर के अंदर भी हम ये स्ट्रैटेजी यूज करते थे कि अगर कोई एक्सपायर होने वाली है नियर 3 to 6 मंथ्स, तो उसके ऊपर ब्लू कलर का लेबल कर दिया जाए, ताकि वो आपकी नजरों में और उस हिसाब से आप यूटिलाइजेशन भी इंश्योर करवाएं। तो आपकी कलर कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा येलो कलर हमने एक और बात की थी, जब आप कोई ड्रग क्वारंटाइन कर देते हैं, जब आप उसे प्लेस कर देते हैं कि अभी उसकी डिटेल आनी है, डिटेल अभी उसकी नहीं पास हुई, तो आप उसको येलो से लेबल कर देते हैं डिटेल इन प्रोसेस, और जैसे डिटेल क्लियर होती है फिर आप उसका स्टॉक यूटिलाइज करते हैं। लास्ट एंड हाईलाइट मेडिकेशन में आपकी स्टाफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप ट्रेनिंग से आप स्टाफ को करें, क्लिनिकल हाईलाइट के हवाले से, सेफ हैंडलिंग के हवाले से, कहीं पे कोई प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं उनको टैकल करें,
ताकि नियर मिस और एरर्स जो है उनको, उनके अगर जो प्रोसीजर्स हैं उनको रिपोर्ट करें। सम टाइम बिल्कुल एक पॉइंट पे जाके जो है ना वो आइडेंटिफाई होता है ये एरर था, और वो होता है कि बाल बाल बचे, वो वाला हिसाब। तो वो इस चीज को क्या कोई भी ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल इस पॉइंट पे जाके हो, तो आपको पहले ही इंश्योर करवाना है कि आप सेफ हैंडलिंग, सेफ स्टोरेज, सेफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर मेडिकेशन यूज ऑडिट्स, ठीक है, आप रियल टाइम अलर्ट्स और रूट कॉज एनालिसिस वगैरह ये सब। और उसके अलावा एट द एंड आपकी हाई अलर्ट मेडिकेशंस की अगर एरर्स होते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पेशेंट हार्म है, मेडिकल माल प्रैक्टिस क्लेम्स हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। आपका प्रोफेशनल और हॉस्पिटल का ट्रस्ट, उसकी रेपो खराब होती है। डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स क्या है हॉस्पिटल के एंड पे, हॉस्पिटल मस्ट हैव अ रिटन हाई अलर्ट मेडिकेशन पॉलिसी। हॉस्पिटल की अपनी एक हाई अलर्ट मेडिकेशन पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर ये पॉइंट्स हों कि हाई अलर्ट मेडिकेशन के केस में डबल चेक्स इंपॉर्टेंट है, हाई अलर्ट मेडिकेशन के केस में सेफ हैंडलिंग कैसे इंश्योर करनी है, हाई अलर्ट मेडिकेशन के केस में आपने उसका स्टोरेज, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे इंश्योर करनी है, आपने उसकी लेबलिंग, एवरीथिंग जो एक पॉलिसी बनी हो और उस पॉलिसी की एक्सेस हर एक तक हो, वो एक एसओपीज की फॉर्म में जगह जगह प्लेस हुई हो, ताकि हर बंदे को पता हो ये पॉलिसी बनी हुई है और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। अगर हम इसको निगेट करें या फिर हम उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो देन फिर वो आंसरेबल है उस चीज के लिए। क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हैंडलिंग हाई रिस्क मेडिकेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो कि आपने अगर हैंडल करना है तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इस लेवल पे और किसकी है वो। और रिपोर्ट इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड नॉन प्यूनिटिव कल्चर टू सपोर्ट सेफ्टी एनवायरनमेंट। ये ऐसा ना हो कि अगर एक बंदा है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसने देखा है कि ऐसा हुआ है, तो उसको ये हो कि अगर मैं इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करूंगा तो ये बात मेरे ऊपर ही आ जाएगी, मैं ही फंस जाऊंगा। एक प्यूनिटिव, नॉन प्यूनिटिव कल्चर, नॉन प्यूनिटिव कल्चर का ये मतलब है कि आपको ये हो कि अगर हम ये करें तो एक सेफ्टी की वजह से करें और हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, तो वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई माइंड के अंदर ऐसी चीज ना हो। तो अब हम कहते हैं ना कि इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें, तो वो स्टाफ नर्सेज अगर रिलक्टेंट है तो वो इस वजह से हो रही होती है कि कहीं हमारे ऊपर बात ना आ जाए कि हमारे एंड पे इशू था। तो उन्हें इस चीज से इंश्योर करवाएं कि भाई आप अगर इंसिडेंट हुआ तो आपने उसको, आप उनको उसमें लें, अपने कॉन्फिडेंस में लें, ताकि आप अपने लेवल पे मैक्सिमम रिपोर्टिंग्स कर सकें और चीजों को इंश्योर कर सकें। इवन के इंसिडेंट्स आपके एलर्जी के हवाले से होते हैं, एडीआर के हवाले से होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से होते हैं, किसी भी लेवल पे होते हैं, तो वो आप उसको इंश्योर करवाएं कि नेक्स्ट पे वो ना हो। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप लोग काइंडली मुझे बताएं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। अभी तक हमारा जो था वो क्लियर हो गया। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन तो यहाँ आप तक था हमारी आज। जी मैम, आप हाँ क्वेश्चन जी, आंसर्स ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ले लेते हैं। अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस श्योर। और जरूरी नहीं है कि आप लोगों का यही क्वेश्चन आंसर सिर्फ इससे ही, इस एस्पेक्ट से हो या इस टॉपिक से हो, इस प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग हो। किसी किस्म का आपको क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्यूरी है, हॉस्पिटल सेटअप के हवाले से, रिटेल के हवाले से, कोई एक्सपीरियंस आप चाहते हैं, कोई किसी किस्म की कोई इवन गाइडेंस भी चाहते हैं, यू कैन कोऑर्डिनेट, यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क, आई कैन आंसर। अच्छा, डिफरेंट बिटवीन नारकोटिक्स एंड कंट्रोल सब्सटेंसेस। देखें, कंट्रोल सब्सटेंसेस एक जनरल टर्म है जो हम यूज कर रहे होते हैं मोस्टली आपकी जैसे ड्रग्स, जिस तरह मैं आपको बताया कि आपकी जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है या फिर कुछ ऐसी हैं जो आपको कंट्रोल्ड उनका यूजेज रिक्वायर है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। लेकिन नारकोटिक्स में ना हम स्पेसिफिकली ना जरा हमारा जो माइंड है वो ओपियोइड्स की तरफ जाता है, जैसे मोर्फिन हो गया, आपकी नेल्बिफिन होगी, ट्रामाडोल हो गया, ठीक है, आपकी ये जो सारी ये वाली ड्रग्स है ना, ये इनके ऊपर हमारा स्पेसिफिकली माइंड जा रहा होता है जो नारकोटिक्स है। या तो ये हम लोग, लेकिन हम लोग एक जनरल टर्म इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर आपकी नारकोटिक्स और दूसरी ड्रग्स भी आ जाती हैं एक ही डोमेन के अंदर। तो नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ड्रग्स हम एक ओवरऑल टर्म यूज करते हैं, जिसके नाम से ही हम रजिस्टर्स के ऊपर भी जब बनाते हैं तो हम नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ड्रग्स का वो लेबल बना के उसको पेस्ट करते हैं। जहां पे हमने लगाया तो हमने वो लगवाया, क्योंकि वो एक डोमेन थोड़ी लार्ज आ जाती है, उसके अंदर सारी मैक्सिमम ड्रग्स आ जाती हैं। ओके, एज अ फ्रेशर हाउ कैन वन सिक्योर अ जॉब इन अ हॉस्पिटल सेटअप?
ओके देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल, ठीक है। अगर पीपीएससी जब तक नहीं होता और आप गवर्नमेंट सेटअप्स की तरफ नहीं जाते तो आप उसके अंदर जरूर अप्लाई करें। देखें स्टार्ट में मे बी आपको एज ए जॉबियन ना रखे हॉस्पिटल वाले, आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप एज एन इंटर्न चले जाएं। आपके अपने उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पैशन है, कितना शौक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, आप एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, शौकत खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। वो स्टार्ट के अंदर अगर आप वहाँ पे एज ए रेजिडेंट फार्मासिस्ट चले जाते हैं, अपनी फार्माकोलॉजी अच्छी करें और आपका उससे पहले कुछ एज एन इंटर्न या फिर वो आपका बिल्कुल विदाउट पे भी अगर आपको रखते हैं, आपका एक पैशन है तो आप जरूर जाएं। 2-3 माह आप इस तरह जॉब करें, उसके बाद आपको वो परमानेंट जॉब पे कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपका पैशन होना इंपॉर्टेंट है, आपका अपने गोल में क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, आपने अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है। आपको अगर परमानेंट जॉब नहीं मिल रही, आप एज एन इंटर्न चले जाएं, 2 to 3 मंथ्स आप अच्छा काम करेंगे, वो आपकी स्किल से इंप्रेस होके आपको डेफिनेटली जॉब पे कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्सपीरियंस जरूर करें। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हमारे पास प्राइवेट हैं जो कि ऑन कर रहे होते हैं, जो कि रख रहे होते हैं फार्मासिस्ट। आजकल हर जगह जरूरत है फार्मासिस्ट की और बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स भी हैं। आपके शौकत खानम है, आप वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए गोल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, समटाइम्स आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, समटाइम आपको अनपेड इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं और फिर आप उस तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन गोल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने आगे परस्यू कहाँ पे करना करियर। Muskan has raised a hand. Muskan, any question? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। Yes, वालेकुम अस्सलाम। मैम मतलब ड्रग डोजेस वगैरह ये चीज़ें जो है, ड्रग्स रिमाइंड करना और डोजेस रिमाइंड करना, कौन सी रेफरेंस मतलब बुक वगैरह को? देखिए स्पेसिफिकली कोई बुक तो नहीं, अगर मैं आपको कहूँ ना तो आप डिफरेंट कंसल्ट कर सकती हैं, मतलब आप डिफरेंट पब्लिकेशन या डिफरेंट आर्टिकल्स। मैं बेसिकली ना, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने कम्युनिकेशन की थी विद डॉक्टर्स, ठीक है। मैंने उसके अंदर पीट स्पेशलिस्ट फॉर एग्जांपल है, उनके साथ कम्युनिकेशन करके उन्होंने डिफरेंट बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं उनके एक अलग एस्पेक्ट से वो करे होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने उनसे जो है ना वो ली थी प्रॉपर डोजिंग सारी और एमजी पर केजी के हिसाब से। मैं ना शेयर करूंगी इनके साथ, मेरे पास पड़ी होगी इंशाल्लाह। ये पीएमपी वालों के साथ ना मैं शेयर कर दूंगी डोजिंग जितनी भी मेरे पास है, तो वो आप लोगों के साथ भी फिर आगे फर्दर शेयर कर देंगे। बेसिकली मैंने तो इन लोगों से कोऑर्डिनेट करके लिया था और एमजी पर केजी पर डे के हिसाब से मैंने मैक्सिमम डोजेज मैंने वैसे याद की थी, पीट स्पेशलिस्ट से कोऑर्डिनेट किया था। क्योंकि आप जब खुद सर्च कर रहे होते बहुत ज्यादा वास्ट एनालिसिस आपको चाहिए होता है, आपने मल्टीपल रेफरेंसेस, मल्टीपल रिसोर्सेज, फिर आप बिल्कुल एविडेंस बेस्ड, और जो बंदा प्रैक्टिस में है और वो उसको कर रहा है, तो अगर आप उससे कोऑर्डिनेट करके, तो मैंने उस तरह ले ली थी। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम पड़ी हुई है, मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। Procedure for distribution of drugs from DHQs to DHQs and RSTs and BHUs. गुड क्वेश्चन उमर, मोहम्मद उमर। अच्छा जी, इसमें यह है कि देखें होता ये है, सबसे पहले प्रोसीजर जो होता है वो होता है प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर, ठीक है। प्रोक्योरमेंट हुई, ये मैं आपको बल्क की बता रही हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे होती है। जब आप लोकली बात करते हो तो वो तो हर फैसिलिटी अपनी कर रही है परचेज। आपने बल्क की जो प्रोक्योरमेंट है, एग्जांपल लेते हैं हम इस तरह डिस्ट्रिक्ट की, जैसे ननकाना डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 3 तहसील्स हैं, तहसील ननकाना, तहसील शाहकोट, तहसील सांगला हिल, ठीक है। 3 तहसील्स हैं, उसकी उसकी डिफरेंट आरएचसीज है मल्टीपल, और बीएचयूज हैं, आरएचसी वाबर्टन और मल्टीपल उसकी आरएचसीज हैं, बीएचयूज हैं डिफरेंट, ठीक है। अब ऐसा है कि जब प्रोक्योरमेंट हुई तो उन्होंने इन सब हेल्थ फैसिलिटीज को कहा जनरेट योर डिमांड। वो सारी हेल्थ फैसिलिटीज ने अपनी डिमांड, वो एक परफॉर्मा चला गया, ये मेडिसिन है, इनकी डिमांड बना के फिर से डिमांड वहां से बनी, डिमांड बन के सारी डिमांड्स आ गई। अब उन डिमांड्स को जब देखा गया, उन डिमांड्स की बेस पे कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं, उसको प्रोक्योर करना है हमने। फिर वो टेंडर हुआ, सारा प्रोसेस चला, टेक्निकल हुई, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन हुई, हमने कल सब कुछ डिस्कस किया था। अच्छा, वो सारा प्रोसीजर हुआ। अब उसके बाद जब सारा कुछ हो गया, अब वो मेडिसिन
कहाँ आएगी, उस डिस्ट्रिक्ट के सीईओ ऑफिस के जो एक स्टोर है उसे सीईओ स्टोर कहते हैं, डीएचओ स्टोर कहते हैं, वो बेसिकली उसको भी फार्मासिस्ट मैनेज करता है। वहां पे भी फार्मासिस्ट एक फोकल पर्सन होता है, उसके अंदर डिस्पेंसर्स होते हैं, डिफरेंट सपोर्ट स्टाफ होता है, सीईओ की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां पे सेक्रेटरी डीक्यूसी भी जो है वो प्रोक्योरमेंट की फोकल पर्सन होती है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फिर इस तरह से वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जब सारी मेडिसिन की फिर जब डिमांड और सारा प्रोसीजर हो गया, प्रोक्योरमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनता है, फिर वहां पे जो मेडिसिन उन्होंने प्रोक्योर करनी होती है वो सर मेडिसिन आती हैं उस मेजर स्टोर में जो सीईओ का स्टोर होता है, वहां पे मेडिसिन आती हैं सारी इकट्ठी कम्युलेटिव। फॉर एग्जाम्पल एम्लोडिपिन है, डीएचक्यू ने उसकी डिमांड दी 1,00,000 गोली की, टीएचक्यू ने डिमांड दी 25,000 की, आरएचसी ने डिमांड दी 10,000 की, ठीक है। अब वो जो सीईओ ने परचेज की, उस जो स्टोर के अंदर जब मेडिसिन आई तो वो उन सब फैसिलिटीज की इकट्ठी होगी, एम्लोडिपिन जब आई तो वो इकट्ठी 3-4 लाख आ गई वहां पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनकी डिमांड्स को चेक किया, इसने ये डिमांड की, इसने ये डिमांड की, इसने ये डिमांड की, और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनता है कि इस टीएचक्यू की ये मेडिसिन जानी है, इस डीएचक्यू की ये मेडिसिन जानी है, इस आरएचसी की ये जानी है, इस बीएचयू की ये जानी है। उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बना, वो मेडिसिन उनकी हो गई, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को आपका सिस्टम होता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था सीईओ लेवल पे भी होता है, वहां पे जो मेजर लोग होते हैं वहां पे, फिर वो जो वहां पे फोकल पर्सन होता है, जो फार्मासिस्ट होता है, जो वहां बैठा होता है उस स्टोर में, वो फिर वहां से मेडिसिन को शिफ्ट करता है सिस्टम में। पहले वो अपने सिस्टम में सारी मेडिसिन एंटर करता है, जब उसको रिसीव होती है उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसकी सैम्पलिंग होगी, उसकी क्लियरेंस होगी, फिर उसके बाद वहां से मेडिसिन जब एंटर कर ली उसने अपने सिस्टम में, फिर वो अपने सिस्टम से कंसर्न्ड जो फैसिलिटीज हैं उनको शिफ्ट कर देता है। डीएचक्यू के अंदर 1,00,000 शिफ्ट होगी, इसके अंदर सिस्टम से भी शिफ्ट होता है, और फिर वहां से वो ट्रक्स के थ्रू, और वो प्रॉपर उनका एक एचआर होता है, वहां से जाती है, या फिर वो हॉस्पिटल्स वालों को कहते हैं कि अपनी भेजें एचआर, और वो आते हैं, और फिर वहां से वो मेडिसिन उनकी लोड होती है, वहां से उनके कंसर्न्ड बंदे आते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं अगेंस्ट देयर डिमांड कि हमारी ये डिमांड थी, अच्छा इतनी गोली इसकी है, इतनी इसकी है, इतनी इसकी है। फिर वो सारी मेडिसिन को अपने हॉस्पिटल और अपनी फैसिलिटी में ले जाते हैं, वहां पे प्लेस करते हैं, फिर वो अपने स्टॉक के अंदर उसको एंटर करते हैं, अपने सिस्टम में उसको रिसीव करते हैं, और फिर वहां से फर्दर डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जब आप ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और आई हैव ऑल्सो बीन सर्व्ड इन सीईओ स्टोर, मतलब फार्मासिस्ट थी एक, वो लीव्स पे थी, आई थिंक सो मेट लीव्स पे थी, तो मुझे 2 महीने का चार्ज दिया गया था उस स्टोर का भी, ननकाना में। तो मैंने वहां पे भी सारी वर्किंग की हुई है, सैम्पलिंग और प्रॉपर लेबलिंग, और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लान वगैरह और हर चीज वहां पे भी देखी हुई है। तो ये सारा ओवरऑल एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म था। आई थिंक सो, इज इट क्लियर नाउ? Any further question? एक फर्दर क्वेश्चन पार्टिसिपेंट की तरफ से ये था कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो कब तक मिलेंगे। तो वो आज 8 बजे अपलोड हो गए, और जो आज वाला रिकॉर्डेड लेक्चर है उसकी वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी, तो वो सब वहाँ से देख सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन है। ओके, हायरार्की ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अच्छा, ऐसे होता है कि ना आप एक हॉस्पिटल के अंदर जब फार्मासिस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सीट्स हैं, आपके टीएचक्यूज में 4 से 5 सीट्स होगी, आपके डीएचक्यूज के अंदर जो है वो सीट्स फॉर एग्जांपल 6 से 8 सीट्स हैं। अब उन सीट्स की बेस पे फार्मासिस्ट आ गए, एग्जाम्पल देते हैं 5 सीटें एक जगह पे, 5 फार्मासिस्ट आ गए। अब वहां पे क्या सिस्टम होता है, आपका मेरिट देखा जाता है, ठीक है। अब अगर तो 2022 जैसे हमारी सिलेक्शन हुई 2022 में, 2022 के सिलेक्टेड 3 फार्मासिस्ट बैठे, मैं वहां पे एग्जांपल दे रही हूँ, और 2018 के सिलेक्टेड, जो 2018 में आया था पीपीएससी, फिर उसको एक प्रॉपर उनका 1 साल तो वैसे स्टे का इशू चला था, 2020 के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया था 2019 में, तो वहां उसके फॉर एग्जाम्पल 2018 2019 के जो फार्मासिस्ट हैं वो 2 है वहां पे, ठीक है। अब टोटल 5 फार्मासिस्ट वहां बैठे हुए हैं, उसके अंदर 2 आपके 2018 के बैच के हैं, 3 आपके 2022 के बैच के हैं। अब वहां पे मेरिट कैसे देखा जाएगा, आपका जो मेरिट है, जो आपका सीनियर बैच है वो आपसे हाई है, मेरिट में ऑटोमेटिकली हाई है, चाहे वो अपने मेरिट में टोटल अगर 450 फार्मासिस्ट था, वो चाहे 439 नंबर पे भी थे, लेकिन वो आपसे सीनियर है, वो आपसे मेरिट में हाई है, चाहे आप अपने बैच के फर्स्ट नंबर पे भी हैं, डजंट मैटर एट ऑल। आपका कंपटीशन अपने बैच वालों के साथ जरूर होगा मेरिट में, लेकिन आपके जो सीनियर है वो आपसे हाई है मेरिट में।
अब वहां पे ये देखा गया कि 5 हैं, इसमें से जो 2 फार्मासिस्ट हैं वो हायर, उनका वो सीनियर है, आपके ऑर्डर्स होते हैं मेरिट पे, ठीक है। उसमें आपके जब ऑर्डर्स निकलते हैं तो जो आपका सीनियर में से भी जो 2 सीनियर है ना, जो आपके 2018 के सिलेक्टेड थे, जो 2 बैठे हुए हैं, उन 2 में से जिस बंदे का मेरिट हाई है, जैसे कि 2 बैठे हुए, एक का 400 मेरिट नंबर है और एक का 250 मेरिट नंबर है। अब 250 वाला जो है वो मेरिट में हाई है, वो बन जाएगा फार्मेसी मैनेजर। प्रॉपर ऑर्डर्स आते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारा डिपार्टमेंट ड्रग कंट्रोल विंग है, वहां पे एसओ हुआ है हमारी फार्मेसी की, एक प्रॉपर सेक्शन ऑफिसर जो कि प्रॉपर उनके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारा एक हॉस्पिटल की तरफ से जाती है रिक्विजिशन के, भाई यही हमारे फार्मासिस्ट हैं, उस हिसाब से वो ऑर्डर्स निकलते हैं। तो वो फार्मेसी मैनेजर के उसके ऑर्डर्स हो गए जिसका मेरिट हाई था। उन दोनों में से भी जो सेकंड वाला नंबर का बंदा है, उसके ऑर्डर्स आएंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के, फार्माकोविजिलेंस के, हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर के। ठीक है, जब जो बंदा क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर भी होता है, हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर भी होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया उसको ही, क्योंकि एक ही पोर्टल है, उससे उसके यूजर नेम लॉगिन चेंज होता है, वो हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम करता है वहां पे, और जो है ना वहां पे भी होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, अब जो 3 फार्मासिस्ट हैं वो जनरली उनमें कहलाए गए वो सिर्फ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, अब वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वास्ट डोमेन है, किसी को वार्ड्स मिल जाती हैं, किसी एक्सपेंस चेक करना है, आपने आपने ओपीडी में बैठना है, आपने ये आपने वो। लेकिन जो फार्मेसी मैनेजर है उस पर सारा हेडेक आता है। फार्मेसी मैनेजर ने स्टोर भी देखना है, फार्मेसी मैनेजर ने ओवरऑल वार्ड्स को भी ऑन एंड ऑफ चेक करना है, फार्मेसी मैनेजर ने बाकी फार्मासिस्ट से रिपोर्ट भी लेनी है, फार्मेसी मैनेजर ने रोस्टर भी बनाना है कि इस फार्मासिस्ट ने यहाँ पे बैठना है, इस फार्मासिस्ट का ये काम है, इस फार्मासिस्ट का ये काम है, ये पोर्टल इसने ऑपरेट करना है, ये पोर्टल इसने ऑपरेट करना है। वो सारी चीजें फार्मासिस्ट करता है, जो फार्मेसी मैनेजर है। और फार्मेसी मैनेजर इवन के डिस्पेंसर्स का रोस्टर भी फार्मेसी मैनेजर बनाता है, डिस्पेंसर्स भी उसके अंडर आते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन भी उसके अंडर आते हैं, वो भी उसका भी रोस्टर बनाते हैं। तो फार्मेसी मैनेजर ओवरऑल सारे काम कर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करेगा, फार्मासिस्ट वर्कअप ऑफ ड्रग थेरेपीज देखेगा, एडीआर रिपोर्टिंग करेगा, टीजीआरपीज रिपोर्टिंग करेगा, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी और तरह की करेगा, हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर भी होता है, कोई सैंपल है वो भी करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो अपनी उसकी एक डोमेन होती है, उसके जेडीज निकले होते हैं कि आपने ये काम करना है। फार्मेसी मैनेजर ओवरऑल हर चीज सुपरवाइज कर रहा है, स्टोर देख रहा है, मल्टीपल चीजें। और जो बाकी 3 अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बच गए, उनको उन्होंने कहा कि आपने ये काम करने हैं। ठीक है, तो मेरे भी मेरिट के बेस पे था। जब हम कोर्ट मोमिन में गए थे तो हमारा एक सीनियर था वहां पे, वो जो एक सीनियर था वो फार्मेसी मैनेजर था, और मैं अपने तीनों में से जो हम कुलीग्स थे उनमें से मेरिट में हाई थी, जिसकी वजह से मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर और हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर बन गई। और कोर्ट मोमिन में जो मैं 10 माह रही, उसमें से 8 माह मेरा ये था सीपीपीओ। मैं उससे पहले 2 माह सिर्फ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट थी, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स 2 माह बाद हुए थे। और जब मैं फार्मेसी ननकाना में चले गई, तो ननकाना के अंदर इस तरह ही हुआ, हमारे बेसिकली जो सीनियर थे वो एक थे आई थिंक सो, और लेकिन हाँ वहां पे थोड़ा सा इशू हुआ था, वहां पे आई वाज नॉट ऑन द मेरिट, लेकिन फिर भी मुझे सीपीपीओ हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर बनाया। आई डोंट नो अबाउट मेरे परफॉर्मेंस की इशू था, क्यों था कि उन्होंने, मेरा मेरिट भी नहीं था, आई वाज द जूनियर, वहां पे मेरे 2-3 सीनियर्स थे, लेकिन मुझे फिर भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर बना दिया। इवन कि ये भी मेरे साथ हुआ कि मेरे साथ ऊपर 2 सीनियर्स प्रेजेंट थे और फिर मुझे ही फार्मेसी मैनेजर भी बना दिया गया। तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं, और मैं खुद इस पे सरप्राइज थी कि मेरा पहले भी मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं था, मैं मेरिट पे नहीं थी, और मुझे सीपीपीओ बना दिया, हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर बना दिया। उसके बाद भी आई वाज द जूनियर और मैं फार्मेसी मैनेजर बन गई। ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके भी देख लेते हैं कि शायद ये बंदा बेस्ट परफॉर्म कर सके, दैट्स व्हाई वो बना देते हैं। और मैं फार्मेसी मैनेजर भी 6 माह रही हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा डिटेल के हवाले से, मेरे से स्किप हो गया, काइंडली प्लीज आप रिपीट कर दें क्वेश्चन को। आई थिंक तो क्वेश्चन ये था कि डीटीएल जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन से पहले है, बाद में है। आई थिंक सो इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेसिकली आपकी जो डिटेल होती है वो तभी होती है जब आपका सारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर ओके हो जाता है, आपने जो कंपनीज हैं उनको डिमांड लिख दी, परचेज ऑर्डर्स आपके जनरेट होकर चले गए, आपकी कंपनी ने आपको मेडिसिन भिजवा दी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब मेडिसिन रिसीव होगी, फिर उन मेडिसिन के अंदर से सैंपल जाता है डीटीएल के लिए, फिर वो इंतजार करते हैं 45 दिन, ऑलमोस्ट 30 to 45 डेज लगते हैं, और फिर जब वो सैंपल क्लियर होके आता है, डिटेल की रिपोर्ट आती है, और फिर उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? Ma'am, there is a question. What's the documentation process? व्हाट्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस? देखिए ये टाइम टू टाइम आपको अंडरस्टैंडिंग होगी
जब आपकी जेडीज क्लियर होते हैं ना कि आपकी ये जेडीज हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन की है और आपने ये काम करने, ये टास्क करने, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, और आपको उन टास्क के दौरान जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये इशू आ रहा है और आप उसको नहीं एड्रेस कर पा रहे, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन ही करनी है, आपने रिटर्न में चीजें करनी है। आपने अगर देखें, फॉर एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि हमें कहा गया कि फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाएं अपने हॉस्पिटल विसिनिटी में, ठीक है। अब मुझे ये कहा गया कि फार्माकोविजिलेंस सेंटर होना चाहिए। अब मैं खुद तो बना नहीं सकती, मैं खुद तो रूम अलॉट नहीं कर सकती, मेरे पास नहीं है तैयार है, ठीक है। मैं एमएस को लिखूंगी विद रेफरेंस टू दिस लेटर नंबर। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर क्या है कि आप कोई रेफरेंस दे रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दे रहे हैं कि आपको ऊपर से प्रोविंशियल लेवल से एक डॉक्यूमेंट आया कि ये चीज इंश्योर करवानी है, आप उसमें लिखते हैं विद रेफरेंस टू दिस लेटर नंबर एट पब्लिश एट दिस डेट, और ये इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो कंसिडर है कि भाई आपने यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करवाना है, और दैट्स वाई ये हमने रिक्वायरमेंट है फॉर दिस एंड दैट, वो जो भी आपकी नेसेसिटीज है सब कुछ है, और आपको रिक्वायरमेंट है और आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, और आप उसके रिक्वेस्ट लिखते हैं और फिर आप एमएस को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको डायरी लग जाती है, डायरी लग के आप जो है एक पास अपनी कॉपी रख लेते हैं, एमएस के पास चलेगी, ठीक है। अब आपने जब ये देखा, ये आपने काम कर लिया, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपने ये काम करना था, आपने उसको एक प्रॉपर उस ऑर्डर का रेफरेंस देके उसको डॉक्यूमेंट करके अगले बंदे तक पहुंचा दिया कि आप ये काम करते हैं। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको, आप वर्बली भी उससे कहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप फिर 15 दिन बाद एक रिमाइंडर डाल के उसको वही लेटर दोबारा भिजवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के केस में आप देखते हैं कि आपकी क्या चीजें, जैसे आप स्टाफ नर्सेज हैं, आप रिक्वायर करते हैं कि ये स्टाफ नर्सेज ये चीजें इंश्योर करें, प्रोटोकॉल्स इंश्योर करें, तो आप फार्मेसी मैनेजर का लेटर हेड से फार्मेसी सर्विसेज का निकाल के आप ऊपर जो है ना वो लिखेंगे टू हेड नर्सेज, स्टाफ नर्सेज, डिस्पेंसर्स, उनको एड्रेस करके ये चीजें रिक्वायर्ड थी और आपको ये एड्रेस किया गया था और ये चीजें आपने इंप्लीमेंट करवानी है, और वो करके आप नीचे अपने साइन, एमएस के साइन, फार्मेसी मैनेजर के साइन वगैरह करके उसको फर्दर उन सबको कॉपीज जो है ना वो फॉरवर्ड कर देते हैं, और उनकी सब तक कॉपी भी पहुंच गई, ग्रुप्स के अंदर भी उनको आपने शेयर कर दिया और उनको एड्रेस कर दिया। अब उन्होंने उस चीज को इंश्योर करवाना, अगर नहीं करेंगे तो फिर एक्सप्लेनेशन लेटर, मतलब एंड ऑल दिस। तो वो आपने सोचना है, समझना है कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपने टारगेट करना और डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अपने आप को मैक्सिमम सेव करना है, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने इसके लिए क्या किया, तो आपने वर्बली अगर कहेंगे ना ये मैंने इन्हें कहा था, हम थे वहां पे जब आपने कहा था, व्हाट्स द प्रूफ, ठीक है। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको कि आपसे एविडेंस मांगा जाता है और आपका एविडेंस आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। ये जब तक आप किसी सिस्टम में एंटर नहीं होते आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस चीज को, ना इसकी इंपॉर्टेंस को, टाइम से टाइम आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ फार्मासिस्ट मेंटरशिप प्लेटफॉर्म को, बिकॉज दे आर एंगेजिंग both young pharmacy professionals and experienced ones, because this is the most important thing. We do not about anything, literally हमें बहुत गाइडेंस मिली, बहुत से लोगों ने गाइड किया। साकिब कुरैशी एट दैट टाइम वो लेक्चर्स बना रहे थे, लई खान था वो लेक्चर्स बना रहा था, ठीक है, वो डिफरेंट वीडियोस बना रहा था, और भी लोग थे डिफरेंट जो कि वर्किंग कर रहे थे। हमने बहुत से लोगों से गाइडेंस ली, बहुत से गाइडेंस ने हमें हेल्प भी किया, लेकिन उस लेवल तक हमें चीजें नहीं पता थी जो हमें सिस्टम में जाके पता चली, जो अब आप लोगों को पता चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू अगर आप इंगेज हो रहे हैं और आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, तो आई थिंक सो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और आगे से आप भी जो है ना इस चीज को करें कि मैक्सिमम जहां तक जिसको जो दे सकते हैं वो दें, अच्छी एडवाइस दे दें, और अच्छा कुछ भी एक्सपीरियंस आप हैं तो आप उसको जरूर शेयर करें। आपने एक कोने क्वेश्चन पूछा, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, जी बिल्कुल होते हैं। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर 18 ग्रेड के होते हैं, लेकिन ओपीएस पे अक्सर मतलब जो है ना वो ऐसा होता है कि ओपीएस 18 होता है ऑन बेसिक पे स्केल, लाइक आप 17 के होते हो, लेकिन आपको ओपीएस 18 की डिप्टी ड्रग कंट्रोलर की फॉर एग्जांपल सीट है वहां पे, लेकिन फार्मेसी 17 का भी उस पर समटाइम हो जाता है, चले जाता है, अगर वो 18 का कोई वहां पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है। और 19 का जो होता है वो मोस्टली ड्रग कंट्रोलर होता है, और ड्रग कंट्रोलर जो है ना वो जिस तरह हमारे तहसील ननकाना के अंदर 19 स्केल में ड्रग कंट्रोलर एक मैडम, वो उनका वास्ट एक्सपीरियंस था एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, और ड्रग इंस्पेक्टर के बाद वो ड्रग कंट्रोलर हुई। पूरी तहसील ननकाना की ड्रग कंट्रोलर, और पूरी तहसील ननकाना में मतलब जो विजिट्स करना, इंस्पेक्शन करना, एक तरह के ड्रग इंस्पेक्टर ही हैं, लेकिन बेसिकली उनका स्केल इस तरह से हो गया कि 19 में जाके उनको ड्रग कंट्रोलर का नाम दे दिया जाता है, 18th में उसको डीडीसी का डिप्टी ड्रग कंट्रोलर का नाम दे दिया जाता है। जब आप 17th ग्रेड में हो फार्मासिस्ट हो,
अगर आप फील्ड में चले गए आप ड्रग इंस्पेक्टर हो गए हो, लेकिन अगर ड्रग इंस्पेक्टर फील्ड वाला ही 18th ग्रेड में चला गया तो वो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हो गया, और फार्मासिस्ट 17th वाला ही 18th में चला गया तो वो भी डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हो गया, और जब आप 19th में चले गए तो आप ड्रग कंट्रोलर हो गए। ठीक है, तो आपकी ग्रेड बेसिस के ऊपर ये नाम दिए जाते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? काइंडली रिव्यूज चाहे मुझे नहीं तो फार्मासिस्ट मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पे ही दे दीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगा, कल वाला थोड़ा सा बीच में ब्रेकेज आ गई थी, बट आई थॉट कि आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा, और नेक्स्ट जो हमारा कल का है वो भी, ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिल जाए हॉस्पिटल एस्पेक्ट से, एवरी एस्पेक्ट से, ठीक है, कि किस किस तरह से एक फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर सकते हैं और फार्मासिस्ट का कितना डाइवर्स रोल है, और आपको इस चीज के बारे में बताओ कि फार्मासिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं है फर्दर। Okay, ma'am. Thank you so much, Dr. Marine, for your Welcome. insightful session. We appreciate your time and expertise. You're welcome, and it's my pleasure. And to Thank you all so much from my side participants, as well. to all participants, thank you so much for joining us. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।